Surendraji, please put it in recording so that we can access this recording immediately after also. Thank you so much for agreeing promptly to our invitation and our request to address queries. You know, I don't need to introduce you to the faculty because you have spent time with us for screening also and answered all our queries very, very patiently and followed it up also, which is so wonderful of you. Really, thank you so much. Thank you very much for that. So without any further delay, we'll start with perhaps the question that Vandana Rastogi has put in the chat box. She says we have to fill the AQR forms, but many of us don't have the past records. What should we do? I think she wants to know about APAR forms. APAR. I think she's got mixed up with AQAR and APAR because we're working on both simultaneously. So I suppose she means APAR. Ji. There are two things regarding this. Am I audible? Yes, you are. Okay. If you have worked somewhere as a dog teacher or temporary teacher, then you may be requiring APAR from those colleges. In that case, what you can do, you can go to that college and you can get the information. Now, this APAR form requires supporting documents. Now, two things are there. When you go to that college, they can easily give you, or there are some people, those who may say ifs and buts are there, and then they will say we don't know that whether you have worked in this committee or not. As far as ad hoc period is being concerned, I just want to tell you that it is more than enough if you get a teaching. There are two categories, two activities rather, I would say, two activities in APAR. Activity 1, serial number 1, which says about teaching and learning, and the second is about the administrative responsibilities and all those co-curricular activity, extracurricular activities are being there. So if you get 80% and above, that is good. So it is deemed that if any college says that how do we know that you have taken 80% classes or not, since no notice has been issued to you, no memo has been issued to you that you have not been taking classes, or that if it has never happened, it is deemed that you have taken the classes, and the college should issue you that certificate where it mentioned that 80% and above classes have been you have taken more than 80% classes. Now the second thing is that in the activity 2 there are 7 sub activities. I will just like to show you if I am allowed to just share the screen. Sir, you are allowed, you can share the screen. You can my screen is visible now. You can see the screen. Yes sir, it is visible है sir. अच्छा, तो ये देखिए आप इसमें मैंने ये अपार को खोला है. ये मैंने अपने कॉलेज का अपार जैसे बनवाया था, कन्वर्ट किया था. अपार है फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो ये आप भरेंगे, इसमें अपनी डिटेल्स भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम. नाउ दिस इज व्हाट एकेडमिक ईयर. नाउ सबसे पहले मैं बता दूं आपको, व्हेन यू टॉक अबाउट एकेडमिक ईयर में आपको मंथ लिखने की जरूरत नहीं है. You can simply write, for example, if mine academic year has to be there, and if I I joined as an ad hoc teacher in 2007, August 2007. So I may write 2007 and 8. This academic year will be 2007-8. Now information should pertain to the academic year referred above. देखिए ये लाइन जो है, इसको थोड़ा अगर आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड पर्टेन टू एकेडमिक ईयर अबव. ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लीजिए. जो एड्रेस था ये इरेलेवेंट है. कई लोग पूछते हैं कि हमारा ये मैरिटल स्टेटस हमारा उस टाइम का क्या था. तो ऑब्वियसली आप 7-8 के भर रहे हैं तो डजंट मैटर, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इट सेज कि 2007-8 की इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं इसमें. सो 2007-8 की इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं, वो डालते चलिए. और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, ये तो स्टैटिक है. अगर हो सकता है आपने बाद में जाके कुछ क्वालिफिकेशन ऐड हो गई, किसी लेटर एकेडमिक ईयर में जाके कुछ एलएलबी कर लिया या कुछ और कर लिया, तो वो आप ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज उस टाइम पे जो था वो डालेंगे. रिसर्च डिग्री जितनी है वो डालेंगे, जिस लेवल पे आपने पढ़ाया है. नाउ दिस इज कोर्स टॉट एट वेरियस लेवल्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर. सारी इन्फॉर्मेशन बाकी, मतलब आप पॉइंट नंबर 14-13 को छोड़ दें अगर, तो ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये उस एकेडमिक ईयर की है जो 6-7 जैसे मैंने लिया. अब डिटेल्स ऑफ रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स अगर आपने इस एकेडमिक ईयर में किया है, अब आप ये मत सोचिएगा ये अपार एक अलग चीज़ है और पीबीएस जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम है उसका जो फॉर्म है वो एक अलग है.
वो असेसमेंट पीरियड का फॉर्म है। ये जो है वो एकेडमिक ईयर का फॉर्म है। ये आप अगर देखेंगे ये वाला फॉर्म जो है, आई विल जस्ट शो यू दिस CBS। नाउ आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट पीरियड लिखा हुआ है, और वहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एकेडमिक ईयर है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये इसलिए नहीं आए हैं कि हमारे मतलब अगर आप देखिए तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि सपोज माय प्रमोशन इज ड्यू इन 2023, तो आई एम सपोज टू एवरी ईयर गेट माय अपार साइंड वेरीफाइड फ्रॉम TIC एंड गेट इट साइंड। तो हर साल मैं ये एक क्या करूँगा, अपार बनाऊंगा और वो रखता चलूंगा अपने साल हर साल, एंड व्हेन माय प्रमोशन विल बी ड्यू in that year I will file my papers, my PBAS supported by this APAR। अब हुआ क्या है, क्योंकि ये हम बैकडेट से पेंडिंग केसेस पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हमें बैकडेट के अपार चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है बस। अब उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि क्या हम पुराने TIC से, पुराने कॉलेज से हम कैसे लेके आएंगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है अगर वो कॉलेज मतलब अकोमोडेटिव है और कॉलेज कोऑपरेटिव है। अदरवाइज देखिए साइन ना करना चाहे तो फिर कोई भी नहीं साइन करना चाहे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही सकती है। तो इसमें उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप ये अपना फॉर्म भर के ले जाइए सारा। ये जो जो आपने उस एकेडमिक ईयर में किया है, ये यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर आप लिखिए। अब मान लीजिए उसमें उस आई वुड से कि 2007 में मेरी अपॉइंटमेंट मान लो अगस्त 2007 में हुई, और मैंने वहाँ पर अपार मैंने जो है सिर्फ 6 महीने काम किया। तो मैं ये सबसे पहले तो उस कॉलेज का मैं नाम ऊपर लिख दूंगा, उस कॉलेज का मैं नाम ऊपर लिख दूंगा जिस कॉलेज में मैंने 2007 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए एडहॉक टीचर। तो कहीं देखिए और कहीं जगह उसका नाम नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं उस कॉलेज का नाम लिखूंगा जहाँ पे मैं एडहॉक, या मैं उसका लोगो भी लगा दूंगा। अगर मेरे पास वेबसाइट से मैं लोगो है तो वो मैं लोगो भी लगा दूंगा, या उस कॉलेज ने वेबसाइट अपना फॉर्म इशू किया हुआ है तो वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए आप। तो ये नाम वो वहाँ से लिख देंगे हम, और उसके उनके भरने के बाद हम ये डिटेल्स भरने के बाद ये ले जाएंगे। इसमें हम सीरियल नंबर, अब मान लीजिए मेरा जो ईयर था वो था 2007, तो मैं अपना 2007 डाल दूंगा। मैंने जो कोर्स पेपर पढ़ाए, मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया, तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भर दूंगा यहाँ पर। जिस लेवल पे पढ़ाया मैं वो भर दूंगा, और टीचिंग मोड डाल दूंगा, क्लासेस जितनी असाइन हुई। अच्छा, क्लासेस असाइन आई कैन राइट माई लाइक लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल जो थे वो मेरे 10 प्लस 18 का 8 का वर्कलोड था। आई कैन मेंशन लाइक दिस, राइट। सो क्लासेस टॉट। नाउ इसमें अब दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल है कि मैंने कितने क्लासेस मेरे को असाइन थी, मान लीजिए मेरे को 75 क्लासेस असाइन थी, और मैं लिख सकता हूँ क्लासेस 70 एंड माय परसेंटेज कैन बी गिवन देयर। या मैं आई कैन राइट कि मेरा कितना था वहाँ पर, वो भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब अपनी परसेंटेज में यहाँ पे 80% जितना भी 90 आ रहा है दैट आई कैन राइट। अब ये देखिए, मैं जो सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 में तो आपको गुड मिल जाएगा अगर 80% अबव है। अब उस कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये इसमें देने में, ठीक है। लेकिन ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और पार्टिसिपेशन, ये वाली एक्टिविटीज है। इसके अंदर सेकंड एक्टिविटीज के अंदर 7 सब कैटेगरीज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन है। अब इसमें से अगर 7 में से कोई भी एक होगी तो आपकी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी कैटेगरी ये एक्टिविटी 2 में। और अगर एक्टिविटी 2 में आपकी कोई भी सेटिस्फैक्ट्री है और कैटेगरी ये जो आपका जो एक्टिविटी 1 है दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें 80% अबव गुड है, तो ओवरऑल ग्रेडिंग आपकी गुड मानी जाएगी। तो इसका मतलब पुराने कॉलेज से सिर्फ आप इस वाली चीज पे ले आइए आप कि भैया मैंने ये इवैल्यूएशन ड्यूटीज, एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन ड्यूटी की हैं। आप इसमें लिख सकते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी, लिख सकते हैं जो भी आपने की। आप वहाँ पर मान लीजिए मैंने एग्जामिनेशन किया तो मेरा डेजिग्नेशन क्या, बेसिकली मैंने किया क्या, तो वो पूछना चाह रहा है कि मैं मान लीजिए पेपर सेटर था, तो मैं पेपर सेटर भी लिख सकता हूँ इसमें, पेपर सेटिंग।
ठीक है, और इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट जो था उस टाइम वहाँ पे लिखेंगे, और जिस पीरियड में या मैंने एग्जाम इवैल्यूएशन किया या अगर मैंने नेचर ऑफ एक्टिविटी इन्विजिलेशन की है तो आई कैन राइट इन्विजिलेशन एंड यू नो वट एवर पेपर सेटर जो था ना यहाँ पर डेजिग्नेशन में पेपर सेटर, या मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है दैट आई कैन राइट एंड फ्रॉम पीरियड मान लीजिए वो जैन 2008 से लेके और हमारा ये फरवरी 2008 था, तो ये पीरियड मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने ये इन्विजिलेशन ड्यूटी की। बस मुझे बाकी और नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है मेरे पास सारे कॉलम भरने हो उस पीरियड में। तो अब देखिए जब हम उस कॉलेज में जाएंगे ये फॉर्म ये भरवा के बाकी सारा, अगर आपका था कोई जॉइंट पब्लिकेशन तो वो बोलेगा ये तो एक्चुअली आगे के लिए भी है ना, ये बहुत ही कम लोगों का होगा, स्कोपस इंडेक्स वगैरह इतना उस टाइम इतना था नहीं। अब ये जो है नंबर ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड, कितनी आपकी एक्टिविटीज कवर्ड है वो आप लिखिए यहाँ पर, और ये है ओवरऑल ग्रेडिंग फॉर B2। B2 मतलब ये जो आपकी B2 वाली ग्रेडिंग है इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ओवरऑल ग्रेडिंग जो है B2 की, ये आप यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप 2 हैं 3 है कितनी भी आप लिखेंगे, और ओवरऑल ग्रेडिंग आपकी अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो सेटिस्फैक्ट्री आप लिख दीजिए, और नंबर ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड जो है आपकी वो बता दीजिए, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी 2 हैं या 3 है, जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं, 1 है तो वो भी लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है प्लीज अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट। अब देखिए आप अपार भरवाने जा रहे हैं और वो बोल रहा है प्लीज अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो बोल सकता है आपको कि आपने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इसके लिए मैं एक सजेस्ट करता था कि सजेस्ट किया मैंने पहले कि एक ना वेरिफिकेशन फॉर्म मैंने एक बनाया था, वेरिफिकेशन फॉर्म मैंने एक बनाया था जो मैंने भेजा भी था, आई हैव सेंट इट टू डॉक्टर स्वाति पाल एंड I have shared it. I have shared it with all the teachers. I sent it to the TICs, and I presume the TIC shared it. I hope you have all received it, folks. आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक मेरे पास मेल में पड़ा होगा या तो वो आप जो है क्या कहते हैं दैट यू कैन, मतलब वो देखिए आपको अपार के सपोर्ट में चाहिए। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब क्या है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रूफ है, वो एक एप्लीकेशन है जिसपे आप वो वेरीफाई करा सकते हैं उस प्रिंसिपल से उस कॉलेज में जाके, एंड दैट यू कैन पुट एज ए प्रूफ ऑफ दिस। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप वो साइन करा लीजिए वहां से प्रिंसिपल से कि उसमें सिर्फ कि मैंने इन सालों में ये एक्टिविटीज की है, एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए प्रूफ फॉर द अपार। देखिए बात सुनिए, हमें चाहिएगा क्या क्या, हमें चाहिए एक कवरिंग लेटर। जब आप प्रमोशन के पेपर्स फाइल करेंगे कि एप्लीकेशन लगाइए कि आई एम अप्लाइंग फॉर माय स्टेज दिस एंड दिस, उसमें प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड सीरियल नंबर 1 आपका ऑप्शन फॉर्म, जो ऑप्शन फॉर्म में मतलब हर स्टेज का अलग ऑप्शन फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 2 प्रमोशन ड्यू हैं तो मैं सबका एक ही ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही ऑप्शन है, अगर मैं पहली स्टेज में कैश 2010 ऑप्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरी में कैश 2018 ऑप्ट कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेज पे किया है तो वही सारी स्टेजेस में मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेज, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म किसी सर्विस का नहीं है, ऑप्शन फॉर्म सिर्फ स्टेजेस का है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 3, अलग अलग स्टेज में आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो पहला आपका लगेगा ऑप्शन फॉर्म, उसके नीचे लगेगा PBAS जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, जिसको प्रमोशन फॉर्म हम बोल रहे हैं, वो लगेगा, जिसमें ये असेसमेंट ईयर लिखा होगा, ये वाला असेसमेंट ईयर है। ये असेसमेंट ईयर आपका यूनिक है, हर एक टीचर का ये अलग होगा। ज्वाइन मतलब मान लीजिए मेरा है असेसमेंट पीरियड दैट इज फ्रॉम 21 Feb से आई कैन टेक इट। We can't see the form now. Form visible नहीं है. फॉर्म विजिबल नहीं है, ओके सॉरी, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। Yeah. हाँ, तो Thank you. असेसमेंट पीरियड ये वाला जो फॉर्म है, देखिए असेसमेंट पीरियड मेरा है मान लीजिए 21 फरवरी से लेके, दैट असेसमेंट पीरियड विल बी टिल 21 Feb 2000 सपोज 15 तक। मेरे पहले प्रमोशन का ये मेरा असेसमेंट पीरियड है।
अब इस असेसमेंट पीरियड में देखिए कि मेरे कई सारे अपार जो हैं वो कौन कौन से आएंगे। ये मेरे अपार आएंगे, देखिए अपार तो एकेडमिक ईयर है, लेकिन ये असेसमेंट पीरियड है। तो एकेडमिक ईयर अगर आप देखेंगे तो 10-11, क्योंकि मेरा फरवरी है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने का ये एक एकेडमिक ईयर बनता है। मतलब एक एक मेरे को फॉर्म चाहिएगा इसका अपार। तो आई विल गेट 1 अपार फॉर दीज 4 months। देन इट विल गो फॉर अनदर अपार विल, जो हमारा 11-12 का होगा वो पूरा लगेगा, 12-13 का होगा वो पूरा लगेगा, और 13-14 का पूरा लगेगा, और 14 से लेके जो 15 का है वो भी लगेगा। तो वो पूरा लग जाएगा। उसमें उसमें आपको आधा बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपार तो पूरा ही बनेगा। लेकिन जो कंप्यूटेशन है वो यहाँ पर वो आप अपने आप ही वो ग्रेडिंग, क्योंकि अपार की ग्रेडिंग है वो असेसमेंट पीरियड में काउंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपार में आपको एक साल में ग्रेडिंग अच्छी नहीं मिली है, मतलब बड़ा रेयर है ये कि तो उस पीरियड की अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक साल का पूरा लगेगा। तो मे दिस इज द पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर आपको एक असेसमेंट पीरियड में जितने अपार चाहिए उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अपार लग जाएगा आपका। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मतलब लग रहा है आपको ये 4 साल का पीरियड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 एंड 14-15, ये मेरे 5 अपार लग जाएंगे। 4 साल में मेरे 5 अपार लग जाएंगे। इट डजेंट मैटर, उसमें कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है सच। तो मैं ये कह रहा था कि आप सबसे पहले उस पुराने कॉलेज में अगर जाएंगे तो वहां से एक एप्लीकेशन लगाएंगे, या आप प्रेजेंट कॉलेज में भी हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वो प्रूफ ले लीजिए कि मेरी टीचिंग का वो 80% एंड अबव सबका डीम्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट किया है उसमें एक साथ आप वेरिफिकेशन स्टैम्प करा के प्रिंसिपल से रख लीजिए। उसको, उस एप्लीकेशन को आप अपार के पीछे लगाइए एज ए प्रूफ ऑफ अपार। फिर अपार साइन करा लीजिए, और पीबीएस जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम का जो फॉर्म है उसके साथ ये सारे अपार अटैच हो जाएंगे। तो आप ये समझिए मेरा प्रमोशन पेपर फाइल हो रहा है, तो उसमें मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है कि भाई मैं अपने प्रमोशन पेपर फाइल कर रहा हूँ इस डेट को। उसके नीचे ऑप्शन फॉर्म लगाया, ऑप्शन फॉर्म के नीचे पीबीएस लगाया, पीबीएस के नीचे आपने अपार लगाए एकेडमिक ईयर्स के। उन अपार्स के साथ आपने, हर अपार के साथ आपने वो प्रूफ लगाए जिसके बेसिस पे आपने अपार भरी, राइट। तो ये आपका पूरा सेट एक तैयार हो जाएगा, और जिससे आप अपने प्रमोशन पेपर फाइल कर देंगे। तो पुराने कॉलेज में अब क्वेश्चन आता है कि पुराने कॉलेज में वो टीआईसी करेगा, उस टाइम का टीआईसी करेगा, या देखिए प्रिंसिपल ने जब आप सबसे पहले प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी ना आपने कि मेरा रिकॉर्ड वेरीफाई करा दीजिए, 80% क्लासेस आपने लिए तो जरूरी नहीं है टीआईसी बताएगा या कुछ भी है। अगर प्रेजेंट टीआईसी वहां पर है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंसिपल भी सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई ये इशू नहीं है, राइट। तो आप उस पुराने कॉलेज में जाइए, वहाँ पे प्रिंसिपल से करा लीजिए, वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो भी कर सकते हैं। ये तो जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑर्डिनेंस में, जो इसमें रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि हर साल जब मैं अपनी अपार बना रहा हूँ तो यूजुअली गवर्नमेंट में सिस्टम होता है अपार का। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है टीचिंग के लिए कि हम अपने जो अदरवाइज गवर्नमेंट में तो जो अपार होता है वो सीनियर जो है ना उसके थ्रू मूव करते हैं। हम इंडिविजुअल वो सेल्फ असेस करता है उसको, और वो अपने सीनियर को सबमिट करता है, उसके थ्रू वो आगे होता है। तो ये पहली बार हुआ है, तो ये आगे के लिए है। मतलब हमेशा अपने अपने हर साल आप ये करते चलिए। अब ये मत कीजिएगा कि अब फिर जब नेक्स्ट प्रमोशन की बारी आएगी तब हम पीछे के सारे 4-5 अपार जो है फिर इकट्ठे करते फिरेंगे। हर साल ये एक्टिविटी अब आपको हर साल करनी है। हर साल आपको अपना अपार जो है वो रेडी करते रखना है, ताकि जब प्रमोशन की नेक्स्ट टाइम बारी आए तो कोई दिक्कत ना हो। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते? Professor Atri, जी good evening, sir. सबसे पहले तो, so for example, if I have got 14 years of teaching and I am applying for the promotions, मैं 14 अपार भरूंगी अभी? नहीं, अलग अलग असेसमेंट पीरियड की भरेंगे ना। 14 अपार भरना पड़ेगा। अगर आप कैश 2018 ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका पहला प्रमोशन मान लीजिए 6 साल में हो रहा है, तो उस 6 साल में आप 6 अपार या 7 अपार जैसे मैंने बोला तो वो भरेंगे। वो एक स्टेज का हो गया। फिर दूसरी स्टेज का हो गया, उसमें दूसरी स्टेज में 5 आपका असेसमेंट, 5 साल का असेसमेंट पीरियड है, तो आपका वो 5 हो गया। तो वहां पर आप 5 या 6 जो भी अपार बन रहे हैं उस असेसमेंट पीरियड के वो लगाएंगे। और एसोसिएट के लिए आपका 3 साल का असेसमेंट पीरियड है, उसमें आपको अगर 3 अपार लगानी पड़ रही है, 4 अपार लगानी है तो वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप 16 अपार जितना भी आपका है हर साल का अपार चाहिएगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कैश 2018।
All right, sir. Thank you so much. What I think, Tara, may I just also add to that, and what I think, Dr. Atri, if I have got you right, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जिस डेट से आपका प्रमोशन ड्यू है उस डेट तक का आपको अपार भरना है, राइट? देखिए अब मैम क्या है कि मैंने अभी बताया ना, जैसे ये आप ये असेसमेंट पीरियड में बता रहा हूँ आपको। देखिए ये हाँ। असेसमेंट पीरियड है मेरा 21 फरवरी 2011 से। अब ये जी। पीरियड सबका अलग अलग होगा टीचर्स का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एकेडमिक ईयर जो है ना, एकेडमिक ईयर तो यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया हुआ है, तो वो एकेडमिक ईयर तो हर साल जुलाई में आता है। अभी कभी क्लासेस मतलब पहले 16 जुलाई से शुरू हुआ करती थी, कभी 21 से होती है, कभी 20 से होती है, तो वो मैटर नहीं करता। तो आप वो एकेडमिक ईयर जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि वहां पर आप ये लिख देंगे सिंपल। No, I don't think that Tara was asking about academic or this thing. I think her question was how many PAR forms does she have to fill? तो शी हैज फिल हर साल का इस तरह से उनको एक एकेडमिक ईयर का एक फॉर्म। नहीं, but up to हर साल up to which point? Up to now or up to the point that she was due for a promotion? कितने प्रमोशन लेने हैं उनको, उनको कितने प्रमोशन लेने हैं? उन्होंने कहा ना 16 साल हो गए। अब मुझे ये बताएं कि 16 साल आपके परमानेंट हो गए? सर प्रोफेसर अत्री, मेरा केस ऐसा है ना, मैं 2006 में ही परमानेंट होगी, मेरा कोई अडॉक का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी एमफिल और पीएचडी। आपका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक? नो सर। तो आपका पहला प्रमोशन होगा 2012 में, ठीक है जी। आपकी स्टेज 1 जो है ना, ये वाला जो आपका जो 6 साल का है, आप इसमें 6 अपार लगाइए या 7 अपार लगाइए डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी आपके असेसमेंट पीरियड में जितने एकेडमिक ईयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2002 से लेके 2017 तक आपका दूसरा प्रमोशन ड्यू हो गया 2017 में। इसमें आपके 5 अपार लगेंगे, और 17 से लेके 20 तक जो अभी है इसमें आपके 3 अपार लगेंगे। तो आपके ये अलग अलग पीरियड्स के लिए अलग अलग अपार लगेंगे, सारे 16 अपार्स लगेंगे आपके, पर अलग अलग स्टेजेस के लिए लगेंगे। सर मेरा एमफिल पीएचडी नहीं है, तो मैं फिर भी करूं अप्लाई? बिल्कुल करिए, पहली वाली 2 स्टेजेस में तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस तरह की पीएचडी की। तो थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सर। है ना, क्योंकि 2020 में पढ़ रही है, उसमें आपको पीएचडी चाहिए, तो वो नहीं कर सकते, मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम है। ये वाला आप जो है पहला वाला 2 दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैश 2010 में। आपको बताऊं कि यूजीसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि कैश 2000 जो 10 है उसको हम ऑप्ट करने की हमारे पास ऑप्शन है, मतलब विद रिलैक्सेशन मतलब इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2018 में दिया है, और 2018 जो है उसको भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन 18 जुलाई 2018 के बाद हम 18 जुलाई 2021 तक, उसमें लिखा हुआ है कि विच हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड और शॉर्टली टू बी क्वालिफाइंग, मतलब शॉर्टली क्वालिफाइंग का मतलब है कि 18 जब हमको ये डीम्ड है कि 18 जुलाई 2021 तक हमें ऑप्शन दे दिया है एक्सरसाइज करने की, तो उसमें हम कर सकते हैं 2010 भी ले सकते हैं, कैश 2010 उसके बाद भी ले सकते हैं 18 जुलाई के बाद। लेकिन वो जो रिलैक्सेशन है ना, जो कैटेगरी 2 और 3 का मर्ज वाला है, वो 18 जुलाई 2018 के बाद नहीं मिलेगा। Dr. Pal, I have a question. Yeah, Sotnia, please ask. थैंक यू। Yeah, Dr. Atri, मेरे को ये पूछना था कि हमारा प्रमोशन सीनियर ग्रेड हो चुका है, सीनियर ग्रेड से सो ग्रेड पे 7 to 8 जाना और 8 to 9, तो इसके लिए एक तो नंबर ऑफ इयर्स ऑलरेडी पीएचडी है, तो कितना चाहिए होगा फ्रॉम 7 to 8 पोस्ट? हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स? 7 to 8 5 years, 8 to 9 3 years। हेलो? 7 to 8 में जाने में 5 years चाहिए आपको, और 8 to 9 3 years, एसोसिएट के लिए 3 years। सो दैट मीन्स हमें 8 अपार फॉर्म भरने होंगे सर? मैम आप ये देखिए ना कि ये अपार का मतलब होता है एनुअल, ये हर साल भरना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम 8 साल का काम एक साथ कर रहे हैं, तो हमें 8 साल तो भरना ही पड़ेंगे। 2 आपको रिपीटिशन लगेगा वो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग साल की है। Okay, that's what I want. Thank you. Good Two evening. participants have raised their hand. I'll just see who they are. We'll take it by raising of hands. There's Shilpa has raised her hand, as I can see. Shilpa, you can ask a question, then I'll go on to the other hand. Ma'am, should I raise my hand for asking the question now? Yes, please, everybody, I request just raise your hand. Abhi Shilpa has raised her hand. So Shilpa, can you please ask your question? Shilpa?
Dr. Yes, Pal, ma'am. Sanjukta wants to get in for the meeting. Yeah. Arun Please sir, tell when Surinderji. Please tell Surinderji. She was let in. Please tell Surinderji. Yeah. Surinderji, please let in. Sanjukta. मैम शी इज नॉट इन वेटिंग रूम, जब वेटिंग रूम में आएंगे मैं एंटर कर दूंगा. Yeah. Okay. Shilpa, please. yeah. Arun sir, which form are we supposed to fill for associate professor? Because I mean, are we supposed to go in for the API scoring? Research score हमें matter करेगा? कौन सा फॉर्म भरना है एसोसिएट के लिए? आप मुझे स्कीम तो बताइए, कौन सी कैश 2018 में भरना चाहते हैं? 2018 में भरना चाहते हैं तो 18 में जो उसके लिए अलग से, मतलब वही फॉर्म है, उसी तरीके का फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है कि ये PBAS और But sir, उसमें research score है. So is there? I mean, although the guidelines don't mention any minimum. ये देखिए, ये फॉर्म है PBAS, ये है एसोसिएट प्रोफेसर एंड अबव. अब इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो सेम आप तरीके की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो मांगी थी. यहाँ पर क्राइटेरिया चला जाएगा, ये 7 एक्टिविटीज फिर से आ जाएंगी जो अब ये ओवरऑल ग्रेडिंग हो जाएगी. अब ये देखिए जो B3 बोल रहा है ना, रिसर्च एंड एकेडमी. अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा आपका रिसर्च स्कोर जो है कहाँ पर बोल रहा है. Sir, actually, यहाँ पर suppose I don't have any research publication in the assessment period. लेकिन बात समझिए, ये जो बोल रहा है ना अब ये एकेडमिक रिसर्च स्कोर, आप देखिए ना, ये जो है बेसिकली ये फॉर्म, आप देखिए फॉर्म के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड अबव. इसका मतलब कोई प्रोफेसर भी अगर अप्लाई करना चाह रहा है कॉलेज में तो वो भी ये फॉर्म लेगा. वहाँ पे जो है रिसर्च स्कोर 110 है, तो उसके लिए भी क्योंकि फॉर्म सेम है तो उसके लिए कॉलम छोड़ दिया है रिसर्च स्कोर का. अदरवाइज आपका एसोसिएट के लिए कोई वहाँ पर API नहीं चाहिए. Okay, so even if there is 0 research score, that is not going to be a problem. Okay, thank you sir. And sir, एक clarification और था जहाँ पे classes assigned का अभी आपने बताया कि we can write down 18 L+T, or do we need to write down, मतलब कुछ calculate करना पड़ेगा on an annual basis? वो तो वैसे ये है कि अगर कुछ पता है आपको रफली जितने अलॉटेड लेक्चर्स होते हैं वो लिख दो. अब उतना पुराना याद नहीं होगा, है ना, तो यू कैन डू दैट, क्योंकि हमें परसेंटेज से मैटर करना है, हमें परसेंटेज मैटर करेगा. तो आप जो है अगर ये भी लिख देंगे ना वहाँ पर ये L+18, ठीक है, लेक्चर टेकन टॉट मतलब 10+18 ही कर दीजिए वहाँ पर भी, ठीक है, पर वीक के हिसाब से, और परसेंटेज मेंशन कर दीजिए, वो वेरीफाई कर दें कॉलेज, दैट इज सफिशिएंट. ओके सर. एंड सर, सपोज अगर हम रिफ्रेशर कोर्स हमने बाद में किया, असेसमेंट पीरियड में नहीं किया, सो डू वी स्टिल नीड टू मेंशन इट कि हमने कर दिया है बट इट्स नॉट विद इन द असेसमेंट पीरियड? वो आपको यहाँ पे देखिए असेसमेंट पीरियड की डिटेल्स मांगी है और एकेडमिक उसकी मांगी है, वो इसमें भरने की जरूरत नहीं है. आपसे अगर वो पूछते हैं अलग से पेपर पे लगा दीजिएगा डिटेल्स उसकी, रिफ्रेशर कोर्स डन इन दिस अगर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द प्रमोशंस ड्यू अप टू 31 दिसंबर 2018. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. Okay, next I think Sushma Maurya. Sushma Maurya, you had Yes, questions? yes, ma'am. Yeah. Sir, good evening. I just want to ask if one person is on study maternity leave or CCL, तो सर जो क्लासेस टॉट वाला जो कैलकुलेशन है उसमें कैसे करेंगे? मतलब उसको माइनस करना है या कैसे करना है? एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको एक्सक्लूड करना है. हाँ, रेगुलेशन में साफ साफ मेंशन है कि जो भी स्टडी लीव है, पेड लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, they shall be excluded from the assessment and the remaining period will be extrapolated. तो बाकी जो पीरियड है उसी को मान लिया जाएगा पूरे उसका पीरियड. सर तो असाइंड में क्या लेंगे? मतलब अरे आप L+T जो है आप लिखिए ना 10+18. ओके, और टॉट में फिर हम उसको माइनस करके परसेंटेज लिख दें? आप टॉट में फिर 10+18 ही लिखेंगे ना, 80 लिखेंगे ना, 10+80 लिखेंगे ना. नहीं सर, वो जो 80% वाला जो है ना लास्ट कॉलम में, उसकी बात कर रही हूँ. परसेंटेज ये पीरियड वाइज तो पूछने. अब आप ये देखिए ना, देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को अपार में भी दी हुई है. अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है कि
ये देखिए आप, ये क्लासेस असाइंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूँ कि 10+8 पर वीक, ठीक है, Yes, sir. क्लासेस टॉट 10+8 पर वीक, बस क्या। Okay. Okay. It's like, may I just interrupt for a minute, Sushma? It's like जो हमारे बच्चे जैसे जो लेट एडमिशंस होते हैं ना, तो हम उनको पिनलाइज थोड़ी ना करते हैं उनके अटेंडेंस को लेके. We calculate the attendance for the period from which they joined. So it's like Okay. that. आपका जो ये Okay. होगा, ये आप वो exclude कर लें. It is extrapolated. You remove that. In the Okay. period that you were in college, did you take all your 70%, 80%, 90% classes? Okay, okay. Another question is relating to APAR. In the last future plans is asked. एक मिनट चीज ऐड कर दूं मैं. आप अच्छा, हाँ, ठीक है. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ असाइन क्लासेस टॉट है, ठीक है, यहाँ पर आपको पीरियड नहीं लिखा हुआ, बोला हुआ पीरियड नहीं बोला हुआ, लेकिन यहाँ के नीचे एक्टिविटीज में जो B2 है, यहाँ पर आपको पीरियड बोला हुआ है, फ्रॉम टू, यहाँ पे पीरियड बोला हुआ है आपको. इसका मतलब टीचिंग में आपको पीरियड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay, okay. Sir, another. आपका पूरा पीरियड भी चला जाता है ये, ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा, बाकी का पीरियड यहाँ पे आ जाएगा. अगर सर इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पेज पर सर प्लीज जाइए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला है नेक्स्ट सेक्शन. सर इसमें हेड, यस, द अपर वन, हेड, डीन एंड या. सर हेड हियर मींस टीचर इन चार्ज आल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स, जो लास्ट में इन्होंने पूछा है अपार में, तो सर हम पास्ट में फ्यूचर प्लान्स क्या लिखेंगे वो नहीं समझ आ रहा. लाइक हम वी आर फीलिंग फॉर द पास्ट ईयर्स. नहीं पास्ट में जो सेक्शन है, फ्यूचर प्लान्स में ये देखिए, ये तो जनरल स्टेटमेंट्स है, तो फ्यूचर प्लान में लिख दीजिए डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव फॉर द कॉलेज एंड यू नो स्टूडेंट. मतलब वो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से ही लिखना पड़ेगा ना. यहाँ पर कौन सा आपने वो. नहीं, फ्यूचर प्लान से वो नहीं समझ आ रहा था ना, क्योंकि वो तो उस ईयर के लिए फ्यूचर होता, अब तो वो पास्ट है. फ्यूचर ओके. बेसिकली आपको जो भी लगता है कि आप एकेडमिकली एक्सेल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं रिसर्च में और आगे करना चाहती हूँ, या मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनोवेटिव मेथड्स में टीचिंग के लिए करना चाहती हूँ, तो वो आप वो ऐसे फिर फ्यूचर प्लान लिखना कि जो आपने अचीव कर लिए हो. ओके सर. सर एग्जामिनेशन रिलेटेड ड्यूटीज के लिए लाइक अगर मैं पेपर सेटर हूँ या इवैल्यूएशन में मैंने पार्ट लिया है, तो सर अगर कुछ टाइम के लिए तो मेल्स हैं मेरे पास, कुछ टाइम के लिए प्रूफ नहीं है, तो उसका कैसे करें सर? किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए? यस सर, इवैल्यूएशन. बात मैं आपको बताऊं, अगर उस पीरियड में, उस अपार में एक आपका जरा भी एक पीरियड आ गया, आपको बार बार क्यों चाहिए? मतलब आपका अगर एक एग्जामिनेशन एक्टिविटी में एक बार टिक हो गया कि ये हो गया, आपको दूसरा इवैल्यूएशन के लिए क्यों चाहिए? हो गया खत्म. सर मैं पीबीएस के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर भी ये सभी रेफर किया जाएगा ना. पीबीएस में तो ये देखिए, पीबीएस में तो कंसोलिडेटेड है. यस सर. तो ये तो कंसोलिडेटेड आएगा, सारी अपार्स का आएगा. वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, देखो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोलेगा एज पर अपार. यहाँ पर आपको टीचिंग के लिए ये नहीं पूछ रहा कि कितने लेक्चर पढ़ाए, यहाँ पे सिर्फ ग्रेडिंग पूछ रहा है अपार. ठीक है. लिखते चले जाएंगे गुड, बस ये ऐसे लिखते चले जाएंगे आपके, भाई वहाँ पे मेरी गुड आती गई है. So that means कि whatever proofs we have, we can attach it for the rest college can verify or the university can verify. Is that it mean? अगर कौन सा कहाँ पे इन्विजिलेशन? Examination and evaluation related duties के लिए. हाँ, अगर कॉलेज वेरीफाई कर रहा है that is sufficient. या यूनिवर्सिटी ने, अगर आपने इन्विजिलेशन नहीं की कॉलेज में, आपने एग्जामिनेशन पेपर चेक किए हैं, या वो एग्जामिनेशन सेंटर है जो भी, अगर वहाँ पे मेल, अगर आपके पास मेल भी है ना, अगर आपके पास मेल आई हुई है कि यू आर एवैल्यूएटर, जो भी एग्जामिनर. सर कुछ इयर्स की है, पास्ट इयर्स की नहीं है, क्योंकि 2008 to 10 में शायद कुछ भी नहीं आता था, तब बाद में आना शुरू हुआ है. बात बताऊं, आपके पास एक तरह से तो पेमेंट भी आती होगी एग्जामिनेशन की ब्रांच से. सर वो तो ट्रेस करनी पड़ेगी कहाँ कितनी आई, मुझे तो पता भी नहीं है. एनीवेज सर एग्जामिनेशन ब्रांच से जो पेमेंट भी आती है उस पे कुछ नहीं लिखा होता, बस हाँ, अमाउंट आ जाता है, पता नहीं होता सर, और कब आता है कितना वो कहाँ से आया है, वो तो हम गेस करते हैं कि क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है तो एग्जामिनेशन ब्रांच से ही आया होगा. May I just add, Atri, actually all these things जो आप बोल रहे हो ना कि examination branch से आता है, that has only recently with name fully and everything it has started coming. इसके पहले नहीं आता था. Yes ma'am. As far as the invigilation duties are concerned, I am asking you
This is what I have suggested to my college, that the present examination committee, they will just put a signature. I mean, how are we going to possibly trace कि 10 साल पहले किसने क्या इन्विजिलेशन ड्यूटी किया था? That is going to be impossible. The only thing we'll have to check out is कि हाँ, a person, if the person is filled up, the person should not have been on leave during that period. अगर आप मान लीजिए 2005 में आप एक पूरे सेमेस्टर के लिए लीव पे थे, लेकिन आपने इन्विजिलेशन ड्यूटीज उस साल के लिए भी लिख दिया, तो वो तो फिर सरासर गलत होगा. So apart from that, the examination committee can just sign it. I think that should be enough. Yes, Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, sir. And thank you, ma'am. Okay. You are very positive in that कि मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है. अगर टीचर उस लीव पे नहीं है तो उसने क्लासेस भी ली हैं और उसने इन्विजिलेशन ड्यूटीज भी की हैं, तो इसमें तो बस एक टिक वहाँ पे हो गया और क्लासेस का हो गया, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, उसकी ओवरऑल ग्रेडिंग गुड हो गई. तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इवन IQAC सेल अगर है, वो उसको ऑथराइज किया हुआ है आपने, तो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे आपने बोल दिया एग्जामिनेशन कमेटी कैन डू इट, दैट्स फाइन, वो कर सकती है. मैंने IQAC सेल को नहीं किया है, मैंने अपनी फॉर डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट पीपल. आई एम आस्किंग यू इफ इट इज ओके. आप बताएं. कल ही बात हुई थी टीचर्स के साथ, तो मैंने उनको कहा था कि एग्जामिनेशन कमेटी के प्रेजेंट कन्वीनर्स कैन they are authorized to sign for all examination for invigilation duties, not for exam, not for evaluation, but for invigilation. Evaluation of SEC and AEC, जो AECC होता है, वो the TIC can always so I have given powers to TICs, current TICs, past TICs also. I have given powers to say the research committee of the college, उनके conveners को, and इस तरह से मैंने दे के रखा है पावर्स. IQAC को नहीं दिया है मैंने. ठीक है, वो आपका इंटरनल मैटर है, वो आप जैसे मर्जी करें. But it's okay, isn't it? I am asking just your opinion. Fine. Perfectly fine. That's All right. Sudha is the next person who wants to ask. Sudha Upadhyay. अत्री सर, मेरी एक दुविधा है. अत्री सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हम सब सुन. हाँ अत्री सर, मैं MPS 98 में आती हूँ, मेरिट प्रमोशन स्कीम 98 में आती हूँ. 2001 27 जुलाई को मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई थी एज ए परमानेंट मेंबर. उसके पहले का मेरा एडहॉक पीरियड जो कुछ भी था, 2005 में सीनियर स्केल मिल गया. 2006 से मेरा सेकंड प्रमोशन ड्यू है. मुझे फॉर्म कौन सा भरना चाहिए? 1/1/2006 को 1/1/2006 को मेरा सेकंड प्रमोशन ड्यू है. आपने कराया नहीं सेकंड प्रमोशन? नहीं सर, हुआ नहीं है, यहाँ पर हो नहीं पाया था. मैं मेरिट प्रमोशन स्कीम 98 से हूँ. 98. आप अपना पेपर जो है ना, MPS का ही फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, आप वो भर के भेज दीजिए तुरंत. अपना आप जो है ना कवरिंग लेटर बनाइए. सर एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर. एक प्रमोशन इनकी मैम की हो चुकी है 2005 में. हाँ, 2005 में इनकी एक प्रमोशन हो चुकी है. उसके बाद आगे का इन्हें बता दें सर कैसे करना है. 2005 में हो चुकी है एक प्रमोशन, तो फिर एक हो चुकी है विद इफेक्टिव फ्रॉम 2005. नो जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 2005. यस सर. 2006 में कैसे होगी मैम आपकी प्रमोशन? फिर आप 2005 में होगी तो फिर 2010 में होगी ना फिर तो. अच्छा 2010. तो मुझे फॉर्म कौन सा भरना चाहिए सर? मेरा वो आपकी मर्जी है. आप 2000 सर मेरी PhD सबमिट हो चुकी है 2008 में, अप्रैल 2008. मैं PhD हूँ अप्रैल 2008. मतलब आपका सेकंड स्टेज का प्रमोशन है मैम ये आप. जी. तो वो तो आप 2010 में आपका हुआ है, तो आप कैश 2010 ले लीजिए उसमें, या कैश 2018 भी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं. आप कैश यानी ये जो MPS 98 है, ये मेरे लिए कोई कारगर नहीं है. जो मेरिट प्रमोशन 98, मैं 96 से पढ़ा रही हूँ सर. नहीं 96 से पढ़ा रहे हो, लेकिन प्रमोशन आपका पहला 2000 मतलब हो गया ना, 2005 में हो गया ना. जी, पहला हो गया. सीनियर स्केल हुआ. कैश 2010 में आप भर दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप रिलैक्सेशन के साथ 50 पॉइंट लगेंगे, हो जाएगा. MPS में 50 तरह की चीजें, वो कह तो रहे हैं कि हम MPS के फॉर्म भी ले रहे हैं और हम कर रहे हैं प्रमोशन करने को, तो पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही है यूनिवर्सिटी इस बारे में. लेकिन और सर अगर मैं 2018 भरूं और क्लेम करूं अपना एसोसिएट, रीडर एसोसिएट? नहीं, आप एसोसिएट तो वो तो बाद में करेंगे, पहले आप सेकंड प्रमोशन तो ले लीजिए. आप अच्छा, आप कैश 2010 आप 10 में ले लीजिए. ये वाला जो है आपका जो सेकंड प्रमोशन है, उसके बाद आपका तीसरा प्रमोशन 13 में ड्यू होगा 2013. हाँ ठीक है.
ठीक है। चाहते हैं आप 2018 में ले लीजिए अगर आपकी पीएचडी हो गई है तो, नहीं हुई है हाँ तो हो चुकी है, 2008 में ही सबमिट है सर वाइवा। 2010 ले लीजिए, थर्ड में 2018 ले लीजिए आप। तो 2018 भरने से क्या ये प्रक्रिया है कि ये दोनों साथ के साथ चला जाएगा? साथ के साथ नहीं होगा ये स्टेज। अच्छा, दो अलग अलग वैल्यूएशन में एक प्रमोशन होगा, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो अलग ही तरीका है उसका, ये ऐसे मतलब नहीं होगा। हाँ, तो पहले क्या है, 2010 ये एक अत्री जी, ये एक रिकरेंट क्वेश्चन है जो सुधा ने पूछा है कि some people are due for 2 promotions, so they have been asking me should they fill up both for both promotions or only, because I have told them कि देखिए वैसे भी एक प्रमोशन जंप करके नहीं होगा, वो आपका पहले एक प्रमोशन करेंगे कि फिर दूसरा करेंगे, लेकिन क्या वो दोनों फॉर्म्स भरे अभी और हम सबमिट करें, आप बताएं। हाँ, प्रमोशन फॉर्म सारे भर दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो होगा स्टेज वाइज ही होगा। मतलब पहले उसका होगा स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन होगी, उसके बाद आपका जब फाइल जाएगी, अप्रूवल आएगी यूनिवर्सिटी से, फिर आप जो है ना तब आपका फिर थर्ड प्रमोशन होगा, ये वन गो में नहीं होगा। सर वो कोई चिंता नहीं है सर, इतने साल इंतजार किया, वो नहीं चिंता है, तो वो तो प्रोसीडिंग तो एक साथ ही होगी, क्रम से ही होगी, ये मुझे भी पता है। मतलब वो जितना कुछ ड्यू है अत्री सर, जो ड्यू है वो मिलेगा ना, माने जो ड्यू है 2010 से 2013 से फिर उसके आगे वो मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिलेगा क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जो टाइम पीरियड है वो 18 जुलाई 2021 तक ही है। उसके बाद फिर अगर देर से अप्लाई करेंगे तो फिर वो हमारा एलिजिबिलिटी खिसक जाएगी, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन मानी जाएगी, फिर एलिजिबिलिटी वो डेट ऑफ ड्यू डेट नहीं मानी जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता आया है, क्योंकि कायदे से तो ये है कि जब मेरा प्रमोशन ड्यू है उसके 3 महीने से पहले, आगे से ऐसा किया हुआ है कि जब वो प्रमोशन मेरा ड्यू हो रहा है उससे 3 महीने पहले मैं अपने पेपर्स फाइल कर दूं और यूनिवर्सिटी उसको 6 महीने के अंदर मेरा प्रमोशन कर दे। लेकिन क्योंकि पेंडिंग केसेस हैं इतने सारे, तो आपको ऑप्शन पुराने पेंडिंग केसेस में दी गई है, तो आप 18 जुलाई 2021 तक आप करनी है सारी चीजें, तो आप फाइल कर दीजिए अपना प्रमोशन पेपर, क्योंकि वो उसके साथ ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और प्रमोशन फॉर्म भी वो कर दीजिए आप, और होगा लेकिन स्टेज वाइज ही होगा, पहले स्टेज 1, स्टेज 2, फिर स्टेज 3 होगा। Okay, next is Abha Jain. Abha, please हाँ ask your question. हाँ जी, नमस्कार सर। मुझे एक्चुअली मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरा ये पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि एकेडमिक हम पढ़ा रहे हैं, 2007 से पढ़ा रही हूँ मैं, और मेरा एक ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज का हो गया था ना 2009 में, तो अब सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का ड्यू है। तो हमारा बेसिक एकेडमिक वर्क कम है और इसमें हमारा जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा है, जैसे हम सुबह 7:30 से 10 o'clock तक प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो पार्ट उसके अंदर आएगा क्या टीचिंग में? नहीं, आपकी टीचिंग कम है मतलब समझे नहीं। टीचिंग इन द सेंस जो पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट पहले पढ़ाते थे 2013 तक, सॉरी 2015 तक पढ़ाते थे एप्लीकेशन कोर्स बीए प्रोग्राम को, दैट वाज ओनली वन सब्जेक्ट गिवन टू अस। उसके बाद 2016 से हमारे पास जेनरिक इलेक्टिव कोर्स आया, जो कि हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और वो भी एक है, मतलब पहले हमने 2 पढ़ाए थे, अब एक है। प्रॉब्लम क्या है आप, तो प्रॉब्लम उसमें क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है लेक्चर अलॉटेड है उतने यहाँ पे लिखिए और जितनी पढ़ाई है वो लिखिए, परसेंटेज तो आपकी चेंज नहीं होगी ना। अगर आपने पूरे साल में आपने अगर 30 लेक्चर ही आपको असाइन, तो फॉर एग्जांपल नहीं, वो ठीक है सर, उसकी बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो हम टीचर, हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, क्या दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट पार्ट और नॉट, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएगा सी कैटेगरी में, ठीक है, बस यही चीज था। और दूसरी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ जाएगा, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा। हाँ जी, एंड अदर इवेंट्स ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, राइट। और एक चीज सर मुझे और पूछनी थी, एक सेकंड, क्वेश्चन यहाँ कहाँ रह गया सर, मैं एक मिनट दोबारा देख के फिर बताती हूँ, नेक्स्ट कोई पूछ ले। Soumya, you're the next person. Soumya. Good afternoon, Professor Atri. Can you hear me? Yeah, we can hear you. We can hear you. Professor Atri, I am my first promotion happened in 2004, June 2004, and if I add 5 years to it, my second promotion will happen then in June 2009. So shall I fill up the MPS scheme? आप भर सकते हैं MPS.
Sir, because I want to fill up the MPS form, so I hope I'm eligible for the MPS scheme because this is before 2010. ये 30 जून 2010 से पहले आप भर सकते हैं जी, तो उसमें मुझे पुराना एक ही फॉर्म भरना होगा कि उसमें भी मुझे 2 प्रमोशन जैसे बचे हैं तो 2 फॉर्म भरने होंगे? नहीं, एक बचा है ना आपका उसमें, एमपीएस में तो एक ही फॉल कर रहा है ना आपका। एमपीएस में मेरा पड़ा, जैसे मैं 2005 में जून 2004 में मुझे 6000 से 7000 ग्रेड मिल गया था। मिल गया ना, तो हाँ। अब आपका एक प्रमोशन 2009 में मतलब ड्यू होगा ना। जी जी। तो एमपीएस में कर लीजिए, इसके बाद आपको 2012 में जो होगा वो आप कैश 2018 या कैश 2010 भर लीजिए। अच्छा, तो उसमें जैसे मेरे पास पीएचडी नहीं है तो मैं उसको 18 या 10 किसी में भी भर सकती हूँ? पीएचडी नहीं है तो फिर नहीं, पीएचडी मेरी 2015 से है, मतलब 15 में है। हाँ, एलिजिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी ना, जब तक आपकी अगर कैश 2018 में आप कराना चाहते हैं और पीएचडी आपकी 2015 में हुई है तो फिर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर 2010 में कराना चाहते हैं? फिर आपकी 2010 में कराना चाहते हैं, उसके साथ फिर 2 कंडीशंस और हैं। उसके साथ कंडीशन ये है कि आपके पूरे पिछले 12 साल में 3 पेपर्स होने चाहिए जी, एप्लीकेशंस जी, बुक हो या पेपर्स हो। हाँ हाँ आपकी एमफिल है तो एक का डिस्काउंट ले लीजिएगा, 2 होने चाहिए जी। 3 पेपर सर हो जाएंगे, लेकिन वो टोटल 12 साल में चाहिए होंगे ना, टोटल सर्विस में 2010 जो रिड्यूस 2010 आया है। वो फॉर्म कहाँ है सर रिड्यूस्ड वाला? क्योंकि हमें लगता है कि जो मतलब उसकी गाइडलाइंस कहाँ है, हमारे पास तो पुरानी वाली गाइडलाइंस हैं जो फॉर्म वही है। नहीं, जो गाइडलाइंस है जो रिडक्शन किया गया ना, पहले ज्यादा पॉइंट लगते थे और अब कम लगते हैं, उसमें जो एक था वो तो मैंने भेजा हुआ है, आई कैन शेयर देयर आल्सो, मतलब अगर So sir, can this happen that till 2009 वाला जो मेरा प्रमोशन है वो तो मैं एमपीएस में करा लूं अभी? हाँ, वो आप एमपीएस में करा लीजिए। हाँ। बाकी जो थर्ड प्रमोशन है वो आप कैश 2010 में भर लीजिए। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, ये एमपीएस 1998 की कट ऑफ डेट क्या है सर? किस डेट तक हम केसेस ले सकते हैं? ये कट ऑफ डेट जैसे मैं बताऊं, कायदे से तो ये था कि उन्होंने दिसंबर 2008 के बाद कैश 2000 यस सर 10 लगा दिया था। फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे। यस सर। कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगा सकते। यस। इसकी डिसीजन आने भी वाला है। तो अभी ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी लेकिन ये कह रही है कि हम एमपीएस के भी ले रहे हैं, तो कायदे से तो अगर टू बी ऑन सेफर साइड अगर ये माने, अगर इनको नहीं है तो ये कैश 2010 ही भेज देना। अगर 2009 वाले में मैंने सर वही बोला इनको कि एमपीएस 98 मैं सर एमपीएस 98 में कराना चाहती हूँ पहला प्रमोशन। बस वही है कि यूनिवर्सिटी में अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है इसकी तो क्योंकि सर बाकी सारे कॉलेजेस में तो ये कह रहे हैं कि 2000, क्योंकि वो डेट जून 2010 है, तो जून 2000 बिटवीन 31 दिसंबर 2008 एंड जून 2010 के बीच वाले सारे केसेस एमपीएस 98 में आ रहे हैं। मैम जो 30 जून 2010 से ये यूजीसी रेगुलेशन 2010 लागू हुए थे जी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया था, 31 जी से लागू कर दिया था। तो उसके बाद आपकी डेट आ रही है, तो अब उस पे तो ऑब्वियसली कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था ही जी। भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, एमपीएस से भेज दीजिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो टाइम खराब करने वाली बात है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप कैश 2010 में भेजेंगे तो ये हो ही जाएगा। कैश 2010 भी, बट आई सिंस आई एम एलिजिबल सर, उसमें मेरे एक 8-9 महीने की सर्विस भी नहीं काउंट हुई थी विदाउट एनी क्लॉज, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो एज ऑफ सो वो पास सर्विस का तो मैं छोड़ ही दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो मुझे लग रहा है कि एमपीएस, क्योंकि पास सर्विस पे सर अभी अनोमली कमेटी ने कुछ कहा है? अनोमली कमेटी का जब आएगा तो पता चल जाएगा सभी को, उसमें जो चेंजेस होंगे, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बट मुझे ये आपसे कंफर्मेशन है कि इफ आई वांट आई कैन सेंड इट इन द एमपी। सर आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। 2010 में आपको इतना रिलैक्सेशन मिला तो हुआ है, कैटेगरी 2 और 3 के मर्ज करके देख लीजिए। आपके 50 पॉइंट चाहिए, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड करना है आपने, जो या जितने आप बन जाएंगे 50 पॉइंट बन जाएंगे आपके सेकंड स्टेज। लेकिन सर वो जो एपी जो 2010 का फॉर्म ही है वो इतना है, वो सब में बटा हुआ कि वो तो भरा ही नहीं जाता है, उसीलिए तो इतने सालों से सबका रुके हुए हैं ये भरा नहीं जाता, वो तो ऐसी कोई बात नहीं। because the earlier form that came for 2010 CAS was, which is why the university में इतने सारे, आप लोग खुद ही जानते हैं, इतने सारे ये जो अटके रहे promotions, because the 2010 CAS form was, had capping at every level and it was very difficult to fill it up. So, वो बात ठीक,
तो लेकिन आप कैश 2000 आप MPS 98 में भरेंगे तो मतलब ऑब्जेक्शन लग के आएगा, फिर प्रॉब्लम वही है, या तो कोर्ट की अभी जजमेंट आई नहीं है कोर्ट की उस बारे में। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज लेवल पे अगर जैसे बाकी कॉलेज इसको भेज रहे हैं प्रोसेस करके, सो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता, ये तो आगे है। हाँ, मतलब उसको अगर पॉजिटिवली यूनिवर्सिटी लेना चाहे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। I have whatever knowledge I have gathered from my interpreting the going through the regulations and adoption of this regulations by EC and AC, उसके इंटरप्रिटेशन से मैं आपसे या टीचर से मैं आपकी तरह टीचर हूँ, ठीक है, मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ और कुछ आप चीज मैं मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि टीचर्स में अवेयरनेस हो जाए। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आप ये मत मान के चलिएगा कि कल को अगर मैं बोलूं आपको कि MPS 98 भर दीजिए और वहां नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ सेफर साइड बता रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है कि MPS हो जाएगा वहां पर जाके, कोई मतलब ये भी पॉसिबल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैश 2010 में तो हो ही जाएगा। हाँ वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि कॉलेजेस जैसे प्रोसेस कर रहे हैं फॉर्म MPS 98 के केसेस का, तो वैसे हम भी अपने कॉलेज में प्रोसेस करा सकते हैं। दिस इज माय चॉइस, आई मीन द कॉलेज इज नॉट अकाउंटेबल इफ आगे यूनिवर्सिटी में कुछ ना हो, बट कॉलेज फेवरेबली प्रोसेस करके भेज सकते हैं। कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो नहीं मना कर सकते, वो आपकी इच्छा है। आप अगर प्रोसेस कराना चाहते हैं उसमें तो आप जी। The college is not going to stop it, Soumya. Nobody in the college said that it would. So I'm No, there has been, I'm telling you why, because I've been asking this from the office for quite some time, and every time I've been told that there is no clause for cases that have falling into 2009. They are saying that they are clear from 2010 and they are clear. Yes, I will still say that there is no clause, but we will process it as you fill it. We will process it. Then it is up to the university. मैम सौम्या मैम, आप अपनी जो एप्लीकेशन देंगे कवरिंग लेटर, उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा केस MPS 1998 में प्रोसेस करके यूनिवर्सिटी भेजा जाए। जी, exactly. So as long as we won't, we are stating the fact which still remains what it is. No, yeah, I know there is clarity coming as we all are talking, and I'm very thankful to Dr. Atri for clarifying with all of us here. But the fact is that abhi tak to, I mean, college teachers feel very nervous if we are told in the office that इसमें आप आ ही नहीं सकते, तो फिर हम अटक जाते हैं कि कौन सा फॉर्म भरें, which is why I'm clarifying. Misunderstood. First and foremost, Soumya, I don't think poor Atri needs to be told all of this as to what is happening in your college. But since you have brought it up, let me assure you that the intention was not to make you all feel nervous, but to let you know that we don't know about the 2009 case because there is no clause about it. That remains the same. So we don't know, but we will send it according to whatever you tell us to send it. It's not that we're not going to send your form at all. Please. All right. If you finish, then we'll move on to the next person. Yes, I finished. Thank you so much. Okay. Vinita Rani, you've raised your hand. मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, ये फॉर्म हमें ऑनलाइन भरना है और क्या हमें एक भरा हुआ फॉर्म मिल सकता है? नहीं, not online. नहीं, ऑनलाइन नहीं भरना, ये आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, ठीक है। भरा हुआ फॉर्म मतलब जैसे आपने अभी हमें समझाया ना कि इसको ऐसे भरना है, क्या हमें किस तरह का, मतलब जैसे कई बार चीजें भूल जाते हैं तो वो सर सैंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं। सैंपल अच्छा सजेशन है आपका, आई विल मेक इट एंड विल फ्लोट इट। हाँ, क्योंकि आप अगर एक बार हमें मिलेगा तो थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं बाद में। There's only one thing I want to say about the sample form is that he cannot make 20 samples for 20 unique cases. So please be very careful. Atri, I will warn you about this. आपने कह तो दिया, which is very sweet of you because you're always ready to help people. But मतलब सब सारे प्रमोशन फॉर्म्स में मेरी डिटेल्स ही चली गई हैं। नहीं, not that your details will go, but it's just that there are unique cases, and that is the reason why. I would request there are many people who are telling me that their hand is up. Yes, I know your hands are up. I'm giving a chance to those people who have not as yet asked a single question. Miss Negi, please wait for everybody to have their turn. I will come back to you for the second question. I have Jayanti, I was coming to you, my dear. Next is Jayanti. Yes, ma'am. Sir, I have a very complicated issue that I have not received a single promotion. Okay, so actually I was working as a part-time teacher at JNU 2000.
So 2000 to 2004, and since there is a clause in 2000 class 2, so I want to also avail my experience of venue, because there was not a single break during that period, not a single day. And I was getting CA, CCA, DA, everything also during that period. So and I have the 2.5 years of experience of as a temporary and adult in my college also. So if I take JNU experience, Gargi also I taught 4 months. So then my first promotion will be, and the आवाज नहीं आ रही है। Your voice went away, Jayanti. Please just repeat और yourself. मेरा जो है एक सिंगल प्रमोशन नहीं हुआ है। 2007 से मेरा फर्स्ट प्रमोशन ड्यू है। इफ आई एम टेकिंग माय जेएनयू एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट, 2007 में मेरा फर्स्ट है एंड 2012 में मेरा सेकंड है एंड 2007 में आपका फर्स्ट है, लेकिन उससे पीछे आपकी कितनी एडहॉक सर्विस है? adhoc मेरा adhoc 1 year and temporary 1 year from JDM college and 4 months from Gargi and 2.5 years from JNU. अब ये JNU वाला जो था, ये आपने बोला पार्ट टाइम था। Sir, part time, but that was a proposed selection committee, and here there is a clause in 2018 class case contractual service. सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा सर। हाँ बताइए। सर इनका केस हमने यूनिवर्सिटी में भेजा था, तो इनका जो पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस था जेएनयू का, वो यूनिवर्सिटी ने कंसीडर नहीं किया था, इसलिए इनकी एलिजिबिलिटी एमपीएस 1998 में नहीं बनी थी सर। वो मुझे पता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा था पार्ट टाइम, वो इसीलिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि वो नहीं मानेंगे वहाँ पर। क्योंकि मैम आप अगर वो देखेंगे ना यूजीसी रेगुलेशन, अगर आप देखेंगे कैश 2010 वाला भी देखेंगे और 18 वाला भी, 18 वाले में तो बोल दिया व्हाटएवर नॉमेनक्लेचर। यस ठीक है, व्हाटएवर नॉमेनक्लेचर जो कर दिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल व्हाटएवर नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुझे लगता है, जरा मैं आपको बता देता हूँ कि काउंटिंग ऑफ पास सर्विस में ना ये कहता है कि कब हो सकती है कि previous ad hoc temporary or contractual service by whatever nomenclature it may be called shall be counted for direct recruitment and promotion provided that आपकी अब मुझे conditions बताइए। पहली ये आपका इन्होंने सुरेंद्र जी कब भेजा था इनका फॉर्म? ये सर 2006 के आसपास भेजा सर, 2009 में, सॉरी सर 2009 में भेजा था। ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि मैम आप ये बताइए, आपकी उस टाइम जो है क्वालिफिकेशन नेट वगैरह थी जो प्रॉपर? मेरा सब कुछ था, पीएचडी डिग्री भी अवार्ड हो गया था। अच्छा, अब मुझे बताइए जो आपकी सैलरी थी उस टाइम, जो सैलरी आपको मिल रही थी पार्ट टाइम में, क्या वो जो रेगुलर टीचर था वहां पर जो अपॉइंट होते हैं या एडहॉक जो भी होते हैं, क्या उनसे कम मिल रही थी? यस सर, वो पार्ट टाइम था, तो पार्ट टाइम में अकेली नहीं थी, 7 लोग थे और जिनका पार्ट टाइम एक्सपीरियंस जेएनयू में काउंट हुआ है। एक मीनाक्षी सिंदुरियल करके स्पेनिश सेंटर में, एंड सी आल्सो हर एक्सपीरियंस आल्सो काउंटेड, एंड सिंस देयर इज अ क्लॉज फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस एंड इट वाज अ थ्रू पार्ट टाइम। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि क्यों रुकेगा वो जाके, क्योंकि ये 3 कंडीशन बोल रखी है, कैश 2018 में भी 3 कंडीशन बोल रखी है। पहला बोलता है कि क्वालिफिकेशन कम नहीं होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन थी। दूसरा बोलता है कि वो जो आपकी जो सिलेक्शन है वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी से होनी चाहिए, वो आपकी थी एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर है, हाँ ठीक है। तीसरा जो कह रहा है कि द इनकम्बेंट वाज ड्रॉइंग टोटल ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स नॉट लेस देन मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ ए रेगुलरली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ आपकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो रेगुलरली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर से कम थी उस टाइम के, जो उस टाइम रेगुलर होता होगा उससे कम थी। तो ये वाला एक्सपीरियंस काउंट मेरे हिसाब से मतलब नहीं होगा अगर आप दोबारा भी भेजेंगे। But sir, I was getting DA, CCA, everything, house allowance. मुझे प्रमोशन देना हो तो मैं आपको अभी दे दूं। मैं सिर्फ आपको मेरे से मतलब मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ। यू कैन ऑल होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ये अभी थोड़ा सा मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक है, थर्ड पॉइंट जो है, जो आपको ये बेनिफिट नहीं लेने दे। तो सर क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको पेपर फाइल करें, ये वाला जो पार्ट टाइम वाला है इस पीरियड को छोड़ के करें। ओके सर, ओके, थैंक यू।
Thank you, Okay. sir. Thank you. After that, there's Bijoyta. Bijoyta wants to ask. हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू मैम। सर मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि जो जिन्होंने ज्वाइन करते वक्त उनके पास एमफिल नहीं थे लेकिन विद इन 2 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किया है, जैसे मेरे केस में है, अब कैश 2018 में क्या हमें वो बेनिफिट मिलेगा 5 इयर्स के? 5 साल का है, अगर विद इन दैट 3 इयर्स आपने कर लिया एमफिल तो वो मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 2018 वाला कैश, मतलब कैश 2018 ऑप्ट करना चाहिए सर? 10 में भी रेगुलेशन में आ गया था, बाद में एंट्री लेवल था, शुरू में एंट्री लेवल दिया हुआ था 2010 में, बाद में किसी ने क्लैरिफिकेशन भेज दिया था उसमें कि वो इन सर्विस जिसने भी, मतलब अगर मान लीजिए आपने एंट्री के टाइम पे आप एमफिल नहीं थे लेकिन 2 साल के अंदर हो गए तो वो आप फिर अगले 3 साल के अंदर आप प्रमोट हो जाएंगे। तो सर हम अपने असेसमेंट पीरियड 5 इयर्स रख दे ना, जो हम पीबीआर भर रहे हैं। और सर उस हिसाब से अगर हमारे 5 इयर्स बन रहे हैं, जैसे मेरे अपॉइंटमेंट थे 2008 मार्च में, तो 21 मार्च में मेरे 3rd स्टेज पहुंच जाएगा, 3rd स्टेज की ड्यू डेट हो जाएगा। दोबारा बोलिए, आपकी पहली क्या थी? अपॉइंटमेंट थे मेरे मार्च 2008 एंड एमफिल नहीं था? जी नहीं कुछ नहीं, बस यही परमानेंट ही आपका 2013 में हो जाएगा आपका पहला प्रमोशन फर्स्ट जी, एंड 2018 में आपका हो जाएगा सेकंड, और 2021 में एसोसिएट। तो एसोसिएट के लिए भी मैं भर दूं ना सर? मतलब पीएचडी है आप? पीएचडी हो रहा है सर, इस 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। 2021 आ गई? ये सर 2021 आ गया? नहीं आया सर, यही तो। एलिजिबिलिटी तो आई नहीं अभी डेट। अच्छा तो ये तभी और सर जब आपकी सर मतलब 2010 जिस डेट को, तो आपकी मार्च 2021 को आपकी एलिजिबिलिटी हो रही होगी ना, आप जी हो गए हो तो जनवरी 2021 में आप पेपर फाइल कर सकते हैं, 3 मंथ्स बिफोर। अच्छा, जनवरी 21 में पढ़ सकते हैं। और सर मतलब 2010 के हिसाब से तो पीएचडी की जरूरत नहीं है, 3 रिसर्च पेपर्स की जरूरत होगी। 2018 के बाद जाएंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, वो रिलैक्सेशन वाला जो कैटेगरी 2 और 3 को मिला के दे रहे हैं जी। उसमें कैटेगरी 2 में अलग से चाहिए होगा, कैटेगरी 3 में अलग से पॉइंट्स चाहिए। जुलाई 2018 के बाद अगर आप ले रहे हैं कैश 2010 जी। अच्छा, उसमें लेकिन कैटेगरी 1 का तो अभी भी कोई बात नहीं है सर, 2018 के बाद उसमें चाहिएगा, फिर वहाँ पे कैटेगरी 1 भी अभी जो मिला है आपको, वो मिला है एक्सेप्शन फ्रॉम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और 3 का कंसोलिडेटेड स्कोर। अच्छा 18 जुलाई के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो 21 है, लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, जो रिलैक्सेशन। अच्छा ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मनीषा अग्निहोत्री। मनीषा। नमस्कार सर, थैंक यू प्रोफेसर पाल। नमस्कार सर, मेरा केस आप थोड़ा सा जानते हैं, आपसे मैंने डिस्कस भी किया था सर, फिर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरा सर, आपको जैसे मैंने बताया था कि पहला जो मेरा प्रमोशन है वो मेरा हुआ है जनवरी 2007 में, 17 जनवरी 2007 में। सेकंड जो प्रमोशन मेरा ड्यू हो रहा है 7,000 से 8,000 के लिए, वो है जनवरी 2012 में सर। और उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर है सर, वो जनवरी 2015 होता है। पर प्रॉब्लम मेरे केस में ये है कि मैं इस पीरियड में, मेरा जो असेसमेंट पीरियड है 2012 से 2015, इस पीरियड में मैं 2 साल स्टडी लीव पे रही हूँ सर, और 1 साल मैं चाइल्ड केयर लीव पे रही हूँ। तो इस केस में जो है मेरा पीएचडी सर, पीएचडी मेरा फरवरी 2015 में मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई थी। मेरा जनवरी से ड्यू होता है, पीएचडी मेरी अवार्ड हो गई थी, तो मैं वो कंडीशन फुलफिल करती हूँ सर। पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जी 12 से 15 3 साल जो है वो 3 साल पूरा छुट्टी पे निकला है आपका? जी सर, ये मैंने थोड़े दिन के लिए ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं चाइल्ड केयर लीव पे प्रोसीड कर गई थी सर, महीने के करीब मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं सीसीएल पे प्रोसीड कर गई थी, फिर मैंने 2015 में1 मार्च को जो है ज्वाइन किया था सर वापस। तो 12 और 15 के, जनवरी 2012 से जनवरी 2015 के बीच में कितना एग्जैक्टली? जी 1 महीना रहे बस आप? जी सर, उस दौरान मैंने एक रिफ्रेशर कोर्स किया था सर, क्योंकि मेरा प्रमोशन के लिए ड्यू था 12 वाले उसके लिए, तो 14 में मैंने वो 14 में किया था सर। अपना पीएचडी सबमिट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था 2014 में,
जनवरी 27 को ज्वाइन किया था, और उसके बाद जो है मैंने पढ़ाया था कुछ दिन के लिए, और फिर मैं जो है रिफ्रेशर कोर्स के लिए चली गई थी सर। उसके बाद फिर मुझे चाइल्ड केयर लीव मिल गया था सर 1 साल के लिए। देखिए इसमें आपका 1 ही महीना निकल रहा है ना? जी सर। 1 मंथ निकल रहा है, तो आप जी 1 महीने की अपार लगाइए, फिर 1 महीने वाली जो अपनी मतलब एकेडमिक ईयर की अपार भरिए, बाकी एकेडमिक ईयर की जी बाकी अपार भरिए, और उसमें लीव लिखिए आप, जो भी चाइल्ड केयर लीव है ना वो जी लगाइए। सर। क्योंकि ये जी कहते हैं कि हम जी चाइल्ड केयर मैटरनिटी लीव है, दे शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, दे शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द असेसमेंट पीरियड से हम वो निकाल जी देंगे, लेकिन उसको टीचर पे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा टीचर को इस जी बात। सर। तो आप उसको जो है 1 महीने की जी अपनी सर। अपार सारी बनाइए, टीचिंग वाली जो है उसमें जो भी जितने 1 महीने का आएगा वो 80% तब 1 महीने में जो ली होंगी वो ली होंगी, बाकी जो जी सर। है उसमें लिख दीजिएगा स्टडी लीव और क्या है, या चाइल्ड केयर है चाइल्ड केयर लीव लिख दीजिए अपार, लेकिन फिर भी लगानी तो पड़ेंगी आप। सर तो आप मुझे क्या सजेस्ट करें कि 2018 वाला ही फॉर्म भरूं मैं? हाँ 18 वाला भर दीजिए, 18 वाला क्योंकि मेरा 1 महीने बाद का पीएचडी है, जनवरी में मेरा ड्यू होता है, जनवरी 2015। मेरा अवार्ड जो हुआ है वो 6 फरवरी 2015 को हुई है मेरी पीएचडी अवार्ड सर, तो वो 1 महीना डिले होगा। ये कौन सा आपने बोल रहा फरवरी में 2015 में हुआ है आपका? हाँ जी, पीएचडी मेरी अवार्ड हुई है फरवरी 2015, 6 फरवरी 2015, और मेरा जो प्रमोशन का जो ड्यू डेट है वो है 17 जनवरी 2015। फिर आपकी डेट एक्सटेंड होगी ना, फिर वो जब तक हाँ फरवरी हो जाएगी सर, फरवरी वाली जन वाली वो फरवरी में आ जाएगी ना फिर वो। जी जी, उसको 6 फरवरी कर दूंगी मैं। 6 फरवरी 2015 कर लीजिए उसको। अच्छा सर, इसमें जो है एक्स्ट्रापोलेशन में कोई मुझे ये सुझाव दे रहा था कि जो पिछले जो साल है उनका पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएगा, जो पिछले सालों का मेरा है अपार जो है। हाँ वो ले सकते हैं, लेकिन इसी में देखिए ऐसा है, वो आपकी पीछे वाली तो सर्विस रेगुलर ही है ना, उसमें तो छुट्टी पे है नहीं। जी जी जी। 3 साल की लगाइए और 2 साल की रेडी करके रख लीजिएगा। इफ ऑब्जेक्शन कम्स या कोई कहता है तो पिछले 2 सालों की और लगा दीजिएगा, क्योंकि एक तो आपकी है ही। जी सर। जी सर। है ही ना, तो पिछले 2 सालों की आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो सर 1 महीने के बेसिस पे मैं ये फॉर्म भर दूं इसका? 1 महीने के बेस पे इस वाली अपार और पिछली 2 महीने की अपार लगा दीजिए। सॉरी सर, कौन सी अपार सर? तो आपकी 1 महीने की जनवरी वाली होगी, जनवरी जी सर। 2012 की होगी। जी 2014 की। हाँ जी। आप 12 में गए ना छुट्टी पे? मैं 11 से गई हूँ सर, सितंबर 2011 से। सितंबर 2011 से मैं जनवरी 2014 तक स्टडी लीव पे थी, और 27 जनवरी तक मैं लीव पे थी। जो भी है, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। जी में आपका अगर एक भी एकेडमिक ईयर की अपार नहीं आ रही है तो आप पिछली अपार लगा दीजिएगा साथ में। जी सर। जी सर। सर पीबीएस में भी उसी के डिटेल भर दूंगी? नहीं, पीबीएस में तो असेसमेंट पीरियड की भरेंगे ना आप, पीबीएस में तो असेसमेंट पीरियड की भरेंगे कि जी उसमें साथ में वो 2 पुरानी वाली लगाएंगे और अपनी ये भरेंगे, क्या कहते हैं जी कि मैं छुट्टी पे थी ये वाले पीरियड में। मतलब ठीक है 12 सर। से 15 आप छुट्टी भरेंगे और 11, 10, 11 वाला आप जो है ना वो अपार की डिटेल्स आप उसमें पीबीएस में भर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। Okay, Namita Sethi. Namita, you raised your hand. Thank you, Professor Pal. Thank you, Dr. Atri, for answering all questions. I have first a silly question because I myself don't know much about my status. Readership interview मेरा हुआ था और reader grade मिल गया था मुझे 2000 I think 8 या 9 में, और मेरी PhD हुई जो वो 2014 में। तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर कब से गिनी जाऊंगी? इज दिस एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर या इसका कोई अलग इंटरव्यू होता है? लेटर आया था, इसका ऑटोमेटिक प्रोसीजर था कि 2006 के बाद से जो बने थे रीडर वो हाँ जी, ऑटोमेटिकली जो है ना एसोसिएट में चले जाएंगे। चले गए। तो फिर उसके बाद अगर वो एज ए कैंडिडेट अगर प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहे तो उनका असेसमेंट पीरियड क्या होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एसोसिएट? के लिए तो देखिए, अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए, तो पहली बात तो ये एमपीएस में कोई प्रोफेसरशिप नहीं थी कॉलेजेस में। कैस 2010 में भी it was 10% or something है ना of the staff। 10% जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज में उसका 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा नहीं हो सकता,
हाँ जी। टोटल जो वैकेंसीज हैं उसकी 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 75, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आपका जो लगेगा, आप ये लगाइए कैश 2018 में ही होगा, और आपकी जो प्रोफेसरशिप है वो 18 जुलाई 2018 के बाद ही बनेगी, अब एलिजिबिलिटी बनेगी। अच्छा, तो 18 जुलाई 2018 से पहले के पिछले 3 साल चले जाइए बस आप, मतलब 18 जुलाई 2015 से वो असेसमेंट पीरियड मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ तैयार है तो। अच्छा, दिस आई वाज जस्ट आस्किंग सर, क्योंकि आप यहाँ हैं आंसर्स देने के लिए तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू। प्रेरणा जी, प्रेरणा अरोड़ा। थैंक यू डॉक्टर पाल, थैंक यू डॉक्टर अत्री। मैं 2003 में रीडर हो गई थी और 1995 में पीएचडी मैंने कर ली थी, रिफ्रेशर्स भी कर लिए थे। तो रीडरशिप के बाद प्रोफेसरशिप के लिए कौन से इयर्स मेरे माने जाएंगे और मुझे कौन सा फॉर्म भरना होगा, मुझे कुछ आपको अंदाजा 18 जुलाई 2018 से आप जब भी एलिजिबल होते हैं, अब आपको कैश 2018 ही भरना पड़ेगा प्रोफेसरशिप के लिए। 2003 से मेरा हुआ है रीडर, तो भी छोड़ दीजिए, आपको प्रोफेसर के आज की डेट में 18 जुलाई 2018 के बाद ही मिल पाएगा। और अगर आप 18 में एलिजिबल होते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ तैयार है, आपका सारे स्कोपस इंडेक्स पेपर, जो 3 पेपर चाहिए उन्हें वो असेसमेंट पीरियड में, पिछले 15 जुलाई 2018 से 18 जुलाई 2015 से लेके 18 जुलाई 2018 तक, अगर आपके ये 3 पेपर हैं असेसमेंट पीरियड में और 110 रिसर्च स्कोर है, जो कंडीशंस हैं उसकी प्रोफेसरशिप की, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो 3 साल का जो पीरियड है ना, वो आपका 18 जुलाई 2018 से पीछे जाएगा। जी, ठीक है। तो उसमें 3 पब्लिश्ड पेपर्स होने चाहिए इन सालों में। पब्लिश्ड पेपर नहीं, पब्लिश नहीं, वो स्कोपस इनके वो होने चाहिए जो यूजीसी केयर लिस्ट के। हाँ जी, हाँ जी। बाकी नहीं मानेंगे वो। अच्छा। हाँ जी, मैं एक मिनट आपको बता ही देता हूँ। ये इसमें आपने देखा होगा शायद, जो प्रोफेसरशिप का देखा होगा कि एक तो नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, एक 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए टोटल आपके करियर में, और सर ये जो 10 सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो 10 पब्लिकेशंस है उसमें बुक्स, चैप्टर्स सब कुछ काउंट होगा या ओनली जर्नल आर्टिकल्स? किसमें सर जो 10 पब्लिकेशंस में तो सब काउंट होगा, रिसर्च पब्लिकेशंस में तो सब काउंट होगा। जो रिसर्च पेपर जहाँ लिखे हैं वो पेपर्स अलग होते हैं, पब्लिकेशंस अलग चीज है। मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, ये कॉलेज लेवल का है, पेज नंबर इस पे दिया हुआ है। ये एसोसिएट प्रोफेसर जिसके 3 साल हो चुके हैं, पीएचडी डिग्री, मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन दी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। तो 10 पब्लिकेशन यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में बोल रहा है ये, पीयर रिव्यूड में, आउट ऑफ विच 3 पेपर शुड हैव बीन पब्लिश्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड। अब ये बात सुनिए, अब ये पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स बोल दिया, लेकिन बाद में कभी आया था कि यूजी सिर्फ ऑल एकेडमिक पर्पस के लिए हम ना यूजीसी लिस्टेड केयर वाले ही मानेंगे। तो अगर आप ये जो पुराने वाले जो 10 है ना आपके जो माने जाएंगे, वो पीयर रिव्यूड में हो सकते हैं, लेकिन ये जो असेसमेंट पीरियड वाले हैं ना, हाँ, 3 असेसमेंट पीरियड, ये जो 3 चाहिए आपको 3 साल में असेसमेंट पीरियड में, जी जी, ये यूजीसी केयर वाले होंगे तभी करेंगे। आप एलिजिबल तो हो सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी जब आएगी ना, वो ऐसे, मतलब आप ये समझिए, इट इज नॉट ए नॉर्मल कोई प्रोसीजर नहीं है प्रोफेसर बनने का। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब करोगे तो वो आगे करेगा ही नहीं प्रोफेसर, नहीं तो वहां से वो आएंगे, उनको एक अपनी वो होता है कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते किसी को। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि एलिजिबल मेरे 2 हो गए, नंबर 3 है वो, उसमें आपको अपना यूजीसी वाले में कर लीजिए। आप अगर सीरियस है प्रोफेसरशिप के लिए तो थोड़ा सा यूजीसी वाले में कर लीजिए, यूजीसी केयर के जो स्कोपस इंडेक्स पेपर है उनमें छपवा लीजिए पेपर अपने। एक्चुअली हमारे म्यूजिक सब्जेक्ट में ना ऐसे है नहीं यूजीसी केयर लिस्ट में कोई। अच्छा, तो वो म्यूजिक में जी, आई थिंक म्यूजिक के लिए अलग से कुछ रूल्स दिए हुए हैं साउंड एकेडमी से रिलेटेड। दिया हुआ वो देख लीजिए आप। अच्छा, तो अगर अभी ये 3 ना हो तो फिर अभी अप्लाई नहीं करूं?
नहीं। अच्छा, तो पहले 3 केयर लिस्ट में डाल के और उसके बाद ही अप्लाई करूं? कभी भी अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, अप्लाई तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, जब आपके हो जाएंगे तब कर लीजिएगा। एक बार वो म्यूजिक वाला क्लॉज देख लीजिएगा जो उन्होंने बताया ना। म्यूजिक का अलग से है क्लॉज, का अलग होता है, म्यूजिकल एजुकेशन वालों का अलग होता है, और म्यूजिक भी दिया हुआ है। ठीक है। इसमें संगीत नाटक एकेडमी, मद्रास म्यूजिक एकेडमी, कंपोजिशन और म्यूजिकल प्रोडक्शन फॉर फॉलोइंग कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ APA स्कोर फॉर फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट। नहीं ना, कभी म्यूजिक वाले किसी ने पूछा नहीं, पहली बार पूछा है जी। तो संगीत नाटक एकेडमी या ये मद्रास वाले में अगर छपवा लिया जाए 3 कुछ समय लगा के और उसके बाद फॉर्म भरा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए उसमें, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है उसको, तो मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। जी, तो अभी फिलहाल मैं रिलैक्स रहूं। हाँ, ये देखो आ गया, ये म्यूजिक वाला आ गया है, ये है आपका, ये म्यूजिक वाला ही है। इसमें बोल रहा है एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए डॉक्टरल डिग्री। ये तो फिर से कोई बोल रहा है आपका, और अच्छा आगे बोलता भी है आपके 6 रिसर्च पब्लिकेशन बोलता है पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स में, और बोलता है कि और ए ट्रेडिशनल और ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट with highly commendable professional achievement in the subject concern, having master's degree, has been A grade artist of AIR, All India Radio या दूरदर्शन, has 10 years of outstanding performing achievements in the field of specialization, has made significant contribution in the field of specialization, ability to guide research, has participated in national and international seminars, has the ability to explain logical reasoning the subject concern, and has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the set. So basically ये तो discretion है पूरी selection committee। हाँ। Okay, are you done? भरना चाहिए या नहीं? नहीं, भर दीजिए, भरने में क्या है। आप ये सब क्वालिफिकेशन आप अगर फुलफिल करती हैं ये एलिजिबिलिटी तो भर दीजिए। Okay, are you done, Prerna ji? ठीक है, धन्यवाद। Okay, so I want Dr. Day's question to be read out. She has written to me that she wants the query to be read out. Surinder ji, आप read out कीजिएगा. After that question is answered, I would want Madhu Gupta and thereafter Neeru Vashisht, and then I'll carry on. So to the next set of people to ask questions. Surinder ji, जरा पढ़ लीजिए शुभ्रा डे का question. जी मैम पढ़ देता हूँ मैम। उन्होंने बोला आई वाज प्रमोट, शुभ्रा डे मैम का क्वेश्चन है सर ये। I was promoted under MPS 1998. I got the designation of associate professor till 2013. Sorry. I got the designation of associate professor within bracket on लिखा है till 2013. I was reader in selection grade. Thank you. क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है सर। I think she is interested in applying for the level 13A and level 14 under CS 2010 and eligibility for both the levels. Dr. Day, if you're on this, why don't you speak up? Please speak up. Thank you so much all of you. Really grateful. मेरा ये प्रश्न है कि मैं जैसा मैंने बोला कि I was associate professor because I got my PhD in 2013. Till then, I had been through the selection procedure and I was reader in selection grade. Now, I am, whether I'm placed at level 13A or एक ये प्रश्न है मेरा, Dr. Atri, with gratitude to you. And the second is promotion to, the next question is promotion to level 14. So first 13A and then level 14. देखिए आपका जो प्रमोशन जो रीडर आपका बने थे 98 में बने थे? नहीं, MPS 98 में हाँ मेरा हो गया था. I was, because at that time I had not got my PhD, so I was reader in selection grade. But I went through the selection procedure, Dr. Atri. Which date? Which year? Exact date मैंने भेजी थी कॉलेज सर, अभी मेरे हाथ में हैंडी नहीं है, but it was around 1998. आपका एकेडमिक लेवल 13A हो गया है मतलब? अब ये मैंने कॉलेज से कंफर्मेशन मांगा था डॉक्टर अत्री कि मैं, मतलब हम लोग ग्रेड के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं लेवल 13A, मतलब I want to read out the letter that she has sent to me, Dr. Atri. आप सुन लें. She has written that in my case, one promotion as lecturer in reader grade was done under the MPS 1998 with effect from 1/11/2001.
Further fixation of pay was done under MPS 1998 in the pay scale of 12,420, 18,300. Point number 2. Secondly, the pay fixation was done with increment for doing PhD with effect from 16/9/2013. Now, I don't know if pay fixation and is equivalent to selection committee, Dr. Day, but anyway, I'm reading out what you have written. Now, in view of the DU notification regarding promotions, I seek the clarification and request you to please guide as to, 1, whether I have to fill any forms / apply for furtherance in financial grade or promotion. 2, the API capping as per the information received by me may not be applicable in my case. Am I required to take any further action or actions regarding promotion being considered? Dr. Atri, Dr. Pal, please, with your permission, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी that I went through the selection procedures. So it's not that just the pay fixation was done. I was given the designation of a reader in selection grade through the selection procedure. मगर उस समय associate professor हम use नहीं कर सकते थे technically without PhD. No, that has changed now. That has automatically, he's already. 4 अगस्त का मैं लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ. UGC has notified the UGC regulations on minimum qualifications for appointment of other academic staff in universities and colleges, maintenance of standards in higher education 2010. The clause 3.2 of the schedule of clause 6.8.0 of these regulations states as under: incumbent readers and lecturers, selection grade, who had not completed 3 years in the pay scale of rupees 12,000 to 18,300 on or after 1st January 2006 shall be placed at the appropriate stage in the pay band of 15,600 3900 with AGP of 8,000 till they complete 3 years of service in the grade of lecturer, selection grade, reader, and thereafter shall be placed in higher pay band 4 of 37,400 67,000 and accordingly redesignated as associate professor. तो ये तो बोल रहा है जी डॉक्टर अत्री. So I am eligible and I can pay fixation अगर कर दी गई है जो आपने grade बताया उसमें, तो I am eligible now for level 13A and level 14 or only 13A. नहीं आप तो देखिए ना, आप तो 13A में तो आ गए, आ गए हैं, ठीक है सर. अब आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं. अगर आप वो मतलब 3 साल हो गए आपको एसोसिएट बने हुए, तो आपके मतलब 3 साल बाद आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो बाकी कंडीशन फुलफिल करते हैं. तो 16 में एलिजिबल is the API applicable to her or not? और 3 successive years लिए जाएंगे तो 13 से 16 मतलब 18 के पीरियड में कैसे काउंट करेंगे, क्या होना जरूरी है? और API एक बार ये वाला लेटर जो है ना, लेट मी रादर देन मेरा नंबर आप ले लीजिएगा और मेरे को जरा अपना ये डिटेल्स ना मेरे को भेजिए, एक बार मैं स्टडी करके देन आई विल गेट बैक टू यू. सर आपको कैसे आपका नंबर कॉलेज? I will share it with you, Dr. I will share. Thank you. I'm really grateful to all of you. Thank you so much. Okay, Madhu Gupta ji, I think आपका टर्न था नेक्स्ट. हाँ सर, हाँ गुड इवनिंग. ये मैं पूछ रही थी तो सम ऑफ माय क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय यू ऑलरेडी. ये 1998 में प्रोफेसरशिप का एक बार आया था फ्रॉम रीडर टू प्रोफेसरशिप, उसके बाद वो शायद 2004 में चला गया था. मेरा एक्चुअली मैं रीडर डेजिग्नेशन मींस विद पीएचडी मेरा हुआ था 1996 में. 1996 में आई वाज रीडर विद डेजिग्नेशन, दैट मींस नॉट ओनली स्केल विद डेजिग्नेशन. अभी मेरा 1998 में आप बोल रहे हो कोई प्रोफेसरशिप का नहीं है, क्योंकि पहले वो था विद 8 years of reader designation you can apply for the professorship. So MPS में 1998 में नहीं हो पाएगा. MPS में प्रोफेसरशिप नहीं करेंगे, नहीं होगी. नहीं होगा. अच्छा ठीक है. बाकी का तो आपने बता दिया. 2018 वाला तो आपने बता दिया. यू शुड हैव सम पेपर्स, रिसर्च पेपर्स. अच्छा एक और बात बताइए, अगर मैंने 80s में कोई पेपर्स लिखे हैं इन यूनिवर्सिटी केयर लिस्ट वाले में ही, तो वो 10 में आ जाएंगे. 1980s में लिखे हैं या 1990s में लिखे हैं. कोई बात नहीं, वो तो आपकी एंटायर सर्विस के जो चाहिए, जो आपको चाहिए वो 10 पेपर चाहिए. हाँ. आएंगे 3 चाहिए हमारे को असेसमेंट पीरियड में. असेसमेंट ईयर के 3 चाहिए, और जो पहले बहुत पहले लिखे आफ्टर मतलब 80s में या 90s में, दैट कैन बी इंक्लूडेड ना. आपकी 10 के टोटल में काउंट होगा. अच्छा जी, थैंक यू. यही पूछ रही थी मैं.
Okay, thank you. Neeru Vashisht next. Yeah, good evening, Dr. Pal. Good evening, Dr. Atri. मधु के ही कंटिन्यूएशन में सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा भी केस ऐसा ही है। 98 या 99 में मुझे लेवल 13A मिल गया था, रीडर स्केल और ग्रेड मिल गया था। प्रोफेसरशिप के लिए सर जो 10 आर्टिकल्स हैं, तो उसमें आपने अभी शायद प्रेरणा को ये बोला कि यूजीसी केयर में होने जरूरी है। मान लीजिए 10 के 10 अगर हमारे पीयर रिव्यूड में हैं तो भी एलिजिबल हैं। ये हमारी यूजीसी रेगुलेशन कहती है, लेकिन अभी जो एक थोड़े दिन पहले आया था ना, एक लेटर आया था जिसमें ये कहा था कि यूजीसी केयर में होने चाहिए फॉर और एकेडमिक पर्पस। तो आप ये मान के चलिए कि जिस डेट से वो आया है लेटर, इतनी आप ये मान के चलिए कि जिस डेट से वो लेटर आया है उसके बाद की जो पब्लिकेशंस हैं वो तभी कंसिडर होंगी जब वो यूजीसी केयर लिस्ट में होंगी। स्पेशली प्रोफेसर क्या डेट हुई सर? वो ये जुलाई 18 वाली देखना पड़ेगा। जून है शायद। लास्ट ईयर ही आया या इस साल आया? जून 2019। जून 19 तो मतलब वो यूजीसी केयर में ही होना चाहिए। पीयर रिव्यूड में अगर 10 के 10 होंगे तो वो एलिजिबिलिटी नहीं मानेंगे। वो देखो, जून जो भी पेपर आपका छपा है 19 जून 2019 के बाद, वो तो यूजीसी केयर में होना ही चाहिए। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपके असेसमेंट पीरियड वाले हैं, ये भी वो मानेंगे नहीं। मतलब वो आप चाहे आप क्लेम कर लो, पेपर पे कोई ऑब्जेक्शन ना करे, लेकिन वो जब तक आप वो इंटरव्यू होगा तो उसमें वो विल नॉट कंसीडर इट अनलेस एंड अनटिल यूजीसी लिस्टेड है। तो बेसिकली सर अगर जो 10 है उसमें से 3 यूजीसी केयर में है और 7 पीयर रिव्यूड में है तो ठीक है। बाकी सारे अच्छा, अगर कोई एक हाइपोथेटिकल ओके और हाइपोथेटिकल केस हो सर कि अभी मान लीजिए किसी के रिसर्च पेपर कभी किसी ने लिखे ही नहीं और वो अब लिखना शुरू करता है, मान लीजिए 2020 ऑनवर्ड्स, तो भी वो एलिजिबल होगा फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन। एक साल में लिख ले 3 पेपर यूजीसी लिस्टेड वाले और बाकी 7 पीयर रिव्यूड में भी लिख ले, कोई इशू नहीं है। असेसमेंट पीरियड 15 to 18 में कुछ नहीं है, मान लीजिए, no issue. So practically 3 in UGC care and 7 in peer reviewed is the basic minimum eligibility. जब उसके 10 पेपर हो जाएंगे ना, मान लो उसका 0 है आज पीरियड में, जब उसके 10 पेपर हो जाएंगे तब एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी। Okay, thank you sir. पीरियड वो 3 साल का पीछे ले ले। Right. Thank you sir. Thank you. Okay, Ritu Arora. Ritu, you had a question to ask. सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। एक तो आपने जो लेटर अभी मेंशन किया एसोसिएट प्रोफेसर का, वो कौन सी डेट का लेटर है? यू सेड 4th अगस्त। 4th अगस्त 2015 का है ये। हाँ, ईयर 4th अगस्त 2015। 2015। ओके, थैंक यू सर। सर मेरे क्वेश्चन ये हैं, एक आपने शुरू में जो फॉर्म बताया था कि ग्रेडिंग करनी होगी, तो वो ग्रेडिंग हु विल बी डूइंग द ग्रेडिंग? द स्क्रीनिंग कमेटी और द कैंडिडेट इटसेल्फ विल डू द? आपकी जब आपके पास प्रूफ है, जब आपको मिला है, लेटर मिला है कि 80% से ज्यादा, तो आप ग्रेडिंग खुद ही करते हैं ना। किसी को स्क्रीनिंग कमेटी का ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्ट करेंगे। अच्छा, थ्रू आउट ग्रेडिंग कैंडिडेट को खुद ही करनी है। और एक जैसे यहाँ पर एक जगह गाइडलाइंस दी हुई है, कैलकुलेट टाइम, जैसे चेकिंग का टाइम है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड डिवाइडेड बाय 10 या डिवाइडेड बाय 7.5, तो वो किस तरह से कैलकुलेशन करनी है? तो आप कैश 2010 की हाँ 2010 में, या और जो 7.5 से डिवाइड की बात कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग में कैटेगरी 1 में है 7.5 से डिवीजन। हाँ, और एक जगह डिवाइडेड बाय 10 भी है कहीं पर। कैटेगरी 2 में है वो डिवाइड बाय 10। कैटेगरी 1 में 7.5, उसकी जरूरत नहीं है ना। अब कैटेगरी 1 की तो एग्जम्प्ट है, नंबर नहीं। कैटेगरी 1 में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए, तो वो सब नहीं करना हमें। बट ये जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन पेपर चेकिंग और पेपर सेटिंग, चीजों को मिक्स कर दिया आपने। एक तो आपने एक्टिविटीज वाला जो बोला, वो एक्टिविटीज जो है वो कैश 2018 में है। और हम एक्चुअली स्क्रीनिंग में है, तो हमने बाद में ओवरऑल फॉर्म स्क्रीनिंग करनी होगी, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स आएंगे, तो वी जस्ट वांट टू नो हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब कैसे हम देखेंगे। हाँ, तो वो देखिए, जो टीचिंग जो कैश 2010 है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3। वो फॉर्म अपने उसी हिसाब से भरेंगे जो फॉर्म उस डेट को एलिजिबल होता है। मान लीजिए मेरी कोई एलिजिबिलिटी जुलाई 2017 में हो रही है, तो 11 जुलाई 2016 के बाद जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल है मेरे ऊपर। या मेरे ऊपर कोई, मैं 2013 में मेरा या 14 में मेरा ड्यू है, तो वो उससे 11 जुलाई 2016 से पहले का फॉर्म है, उस पर वो मैं भरूंगा। वो कैपिंग कंप्यूटेशंस, कैपिंग है कैपिंग नहीं है, वो मैं कंप्यूटेशंस उसी हिसाब से करूंगा जैसे मैं करता था।
तो मैं कैटेगरी 1 में वो भर दे, अगर उसको 7.5 से डिवाइड करना है वो मार्क्स वगैरह भर दे, कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 के, कैटेगरी 3 के। मान लीजिए कैटेगरी 1 के पहले कभी मार्क्स होते थे कुछ, अब तो वो आज की डेट में वो कुछ भी भर दे कैटेगरी 1 में मार्क्स, वो अपने इग्नोर करने हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में पहले वो इंडिविजुअल होती थी, स्कोर होता था, कैटेगरी 2 में इतना होता था, कैटेगरी 3 का एक इंडिविजुअल स्कोर होता था। आज आपको सिर्फ कैटेगरी 2 और 3 का टोटल देखना है। कैटेगरी 2 और 3 का टोटल फर्स्ट स्टेज में 20 होना चाहिए, सेकंड स्टेज के लिए 50 होना चाहिए, तीसरी स्टेज के लिए एसोसिएट के लिए 45 होना चाहिए। अगर ये मतलब इस कैटेगरी 2 और 3 के मिला के हैं तो वो मतलब स्क्रीन हो जाएगा। ऑब्वियसली एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो सिलेक्शन कमेटी होगी, लेकिन जो फर्स्ट और 2 स्टेजेस हैं उनके लिए तो स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी है, तो उसमें आप ये देख लीजिएगा। वो कंप्यूटेशन कर रहे हैं, आप अपना क्यों दिमाग खराब करेंगे उसमें कैटेगरी 1 में तो कंप्यूटेशन के लिए, क्योंकि जब कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं कर, खत्म कर दिया उन्होंने, एग्जाम्पशन कर दिया। 2 और 3 का आप देख लीजिएगा। ओके अच्छा सर, एक चीज मैं पूछ सकता हूँ सर इसकी कंपोजिशन, जो स्क्रीनिंग कमेटी कंपोजिशन है वो कहाँ से मिल सकती है सर? कंपोजिशन स्क्रीनिंग कमेटी की यूजीसी रेगुलेशन में मैंने कहीं देखा था, मैं दोबारा देख के बता दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जो 2010 में थी वही स्क्रीनिंग कंपोजिशन होगी। मेरे पास एक फॉर्म शायद मेरे पास पड़ा भी होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो CS 2018 भेजा है इसमें तो कोई कंपोजिशन नहीं लिखी है सर। मैं आपको, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेजता हूँ वो कंपोजिशन का। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। Achha, now we will take some questions from people who already asked. Tara, I can't seem to see you there. Are you there? Tara Negi. Thank you so much, Dr. Pal. I got exited actually. I don't know what happened. Ask your question. So, Professor Atri, my question is like, we have had our classes like taken from not just the regular classes, but from the NC Web and SOL also. Can we mention them also? And if yes, in the academics, Achha, no? Okay. No, I mean, I don't know. Sorry. I was speaking to myself. Let Dr. Atri answer that. I beg your pardon. देखिए वो जो क्लासेस एसओएल वगैरह में लिए वो दे आर गेस्ट, एज ए गेस्ट लेक्चरर लिए हैं आपने, मतलब वो दे आर नॉट दी। क्या चीज? Can we mention them in our academic APAR? अच्छा, वो एज ए एक्टिविटी आप बोल रहे हैं? हाँ जी। वो देखिए टीचिंग लर्निंग का पार्ट है, उसमें एक्टिविटी में नहीं आएगा वो। सर टीचिंग किया है ना बाकायदा, 3-3, 4-4 साल NC वेब पढ़ाया स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही तो है वो भी, और SOL भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है। आपको उसकी जरूरत क्या है? जब आपने रेगुलर अपने कॉलेज में पढ़ाया तो उसकी जरूरत ही क्या है लिखने की? नहीं, पॉइंट्स के लिए, उसके पॉइंट्स नहीं है। नहीं, कैश 2018 में आप भर रहे हो तो उसके पॉइंट सही है नहीं। ओहो, अच्छा ठीक है। कैश 2018 में उसके पॉइंट सही है नहीं, उसको तो एक्टिविटी टिक करनी है, 80% ज्यादा क्लासेस लिए बस। ओके, thank you so much, Dr. Pal and Professor Atri. Okay, and Sushma Maurya, after that Nisha Malik, and then Abha Jain, then Tanuja. And after that we should stop, it's 5:45. Okay. Sushma Maurya. Yes, ma'am. Sir, I have a very almost same question as Bijoyta asked. Sir, I got permanent appointment in 2008 and I did my MPhil in 2012. So, sir, my 2 promotions are due as far as I am able to calculate. First from 2008 to 13 and second from July 2013 to 2018. सर आई जस्ट वांट टू आस्क, जैसे अभी पहले कुछ डिस्कशन हो रही थी कि आप अप्लाई तो कर दीजिए, तो थर्ड स्टेज के लिए मैं मेरी PhD नहीं है अभी, आई हैव जस्ट एनरोल्ड फॉर माय PhD, तो थर्ड स्टेज के लिए क्या मुझे मतलब अभी अप्लाई करना होगा या मैं कब एलिजिबल होंगी? इसके लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड स्टेज के लिए आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एलिजिबल, मतलब बेसिक देखिए ना, मान लीजिए आप 18 में हो रहा है ना आपका, मंथ क्या है ये 18 में जो हो रहा है आपका, 2018 में हो रहा है ना आपका दूसरा प्रमोशन ड्यू। आप डेट मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए अपना। हेलो सुषमा। सॉरी अनम्यूट कर लिया, सॉरी। मेरा 4 मंथ्स का एडहॉक एक्सपीरियंस है इन द सेम कॉलेज, लेकिन सर ब्रेक आ गया बीच में 2-3 महीने का, फिर जुलाई में मैं परमानेंट हुई 2008 में।
ठीक है, वो आप जुलाई में हो गए ना, तो आपका जो भी मतलब जुलाई 2018 में ही आप मतलब है, अभी मैं ये नहीं जा रहा एडॉक पीरियड आपका काउंट आप अपने हिसाब से करना कैश 2018 सर मैं करना चाहती हूँ काउंट, तो उस हिसाब से एलिजिबिलिटी बता दीजिए सर थर्ड स्टेज के लिए, और क्या काउंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ब्रेक कैश 2018 में ब्रेक के साथ भी हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छा ठीक है। तो थर्ड स्टेज के लिए सर फिर वो पीएचडी जब मेरी होगी कंप्लीट तभी एलिजिबिलिटी बनेगी मेरी? जब आपकी पीएचडी होगी जब एलिजिबिलिटी बनेगी, और जब आप एलिजिबल हो गए हो, आप मतलब आज आपने पीएचडी कर ली लेकिन टाइम पीरियड अपना वो रह गया है, तो आप चाहे आपके पास ऑप्शन है, आप 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीएचडी हो रखे हैं आपके, और आपकी होने वाली है 3 महीने बाद आपकी टाइम पीरियड होने वाला है। नहीं तो अगर आप जिस दिन से पीएचडी हुए हैं उस दिन से आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो करंटली अभी सर मुझे सिर्फ 2 स्टेजेस के लिए जो मैं एलिजिबल हूँ उन्हीं के लिए अप्लाई करना है। ओके ओके सर, एक चीज सर वो इंडेक्स के लिए कुछ है, थॉमस रॉयटर्स लिस्ट में से वो कैलकुलेट करना है, वो कैसे करना है सर पब्लिकेशन के लिए? गाइडलाइंस अ लिटिल बिट ourselves, you know. पेज पे आप देखेंगे ना, अगर उसमें दिया हुआ है गाइडलाइंस, सारे पॉइंट कंप्यूटेशन के दिए हुए हैं। मैंने वो देखा है मैम, सर मैंने वो देखा है, उसमें बस यही लिखा है टू बी कैलकुलेटेड एज पर व्हाट इज द नेम रॉयटर्स लिस्ट। वो आप कैलकुलेट, वो यूजीसी रेगुलेशन देखिए ना आप, उसके पीछे दिया हुआ है वो कैलकुलेशन। थोड़ा सा आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा भाई, read it a little bit. I think this question can be taken up, Sushma, with your other colleagues who are due for promotion. I'm sure they can help you. Let us not ask such basic questions. Things which are more complicated, let us ask him. Okay, ma'am. Where there is ambiguity, where it is very clear we have to calculate according to this, you find out from the others in your college. Okay, now next I think Nisha Malik, Tanuja Raval, Abha Jain. Nisha. Hello, thank you ma'am. Good evening Dr. Atri. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 2003 में परमानेंट हुआ था और विद पीएचडी मैंने ज्वाइन किया था। 2005 में मुझे एक प्रमोशन मिला, तो कौन सा होना चाहिए? क्या मैं एमपीएस अटेंड कर सकती हूँ? आपका 2003 में अपॉइंटमेंट हुआ था? हाँ जी, और 2005 में एक प्रमोशन हुआ सीनियर स्किल का, जिसमें मेरी बैक सर्विस जो थी, एडहॉक सर्विस, वो काउंट हुई थी। सेम आपकी वही तो बड़ी थी जो भी वो मैडम जी सुरेंद्र जी जो आपके रहते थे, ये आप बेटर है कि आप 2010 में अप्लाई कर दें। 2010 में, 2010 वाला 18 भी ले सकते हैं आप चाहें तो, पर आप 2010 कर लीजिए। 2010 बेटर रहेगा। कैटेगरी 2 और 3 के मिला के कर लीजिए आप। करने को आप 2018 भी कर सकते हैं, पर आप कैश 2010 कर लीजिए। अगर आपको अपार नहीं करनी है, आपको अपार है करवा सकते हैं तो अत्रि आपका वॉइस थोड़ा सा वो कम हो रहा है। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। He is saying, Nisha, you can do 10 as well as 18. It is up to you. He is leaving the choice to you. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, Tanuja Raval. Good evening, sir. सर एक बेसिक सा मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट स्टेज से हम सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, सेकंड स्टेज की अगर 50 पॉइंट्स कंप्लीट ना हुए, तो जैसे मेरा अगस्त में बन रहा है लेकिन रिफ्रेशर जैसे मैंने नहीं किया, तो 50 पॉइंट्स ना बने तो क्या उन्हें अप्लाई करना चाहिए, या 50 पॉइंट्स जैसे अभी अगर हम वर्कशॉप्स वगैरह जो लॉकडाउन पीरियड में कर रहे हैं वो 2010 वाली वो हम 19 में ऐड कर सकते हैं क्या? वो 50 बनाने के लिए कैसे होगा सर? देखिए, दिसंबर 2018 से पहले जो प्रमोशंस ड्यू हैं उनके लिए नहीं सर, मेरा दूसरा जो है अगस्त में ड्यू है। 6 अगस्त 2019 में मेरा दूसरा ड्यू है। अभी मेरा एक भी नहीं हुआ। पहला मेरा 6 अगस्त 2014 में ड्यू है, और दूसरे के लिए सर जब प्रमोशन नहीं हो रहे थे तो मैंने कोई रिफ्रेशर भी नहीं किया कि अभी पहला होगा तब दूसरा करूंगी। मैंने कोई रिफ्रेशर नहीं किया, और वो 4-5 इयर्स में मेरे ज्यादा पॉइंट्स मुझे बहुत खींचातानी से बनाने पड़ सकते हैं। तो सर मुझे इतना बता दीजिए कि वो अभी की वर्कशॉप्स जो अभी मैं कर रही हूँ 10 डेज 20 डेज ये तो मैं बताऊंगा। एक मिनट सुन लीजिए। 31 दिसंबर 2018 से पहले जो जो प्रमोशंस आपके ड्यू है, आपने बताया सेकंड वाला आपका 19 में ड्यू है, ठीक है लेकिन 31 दिसंबर 2018 से पहले जो ड्यू है उनके लिए ओरिएंटेशन रिफ्रेशर मैंडेटरी नहीं है।
ठीक है। सर उसका मैं कर चुकी हूँ सर, फर्स्ट वाले का मैं कर चुकी हूँ, उसका मेरा ओरिएंटेशन भी है और रिफ्रेशर भी है। फर्स्ट वाले का मैंने कर लिया जो 4 इयर्स में होना चाहिए था, और मेरा बिल्कुल 4 ईयर के अंदर है। उसके बाद जो 5 ईयर है, क्योंकि नहीं हो रहे थे तो मैं भी फिर सर मैंने कुछ नहीं किया, रिफ्रेशर कुछ नहीं किया उस समय। तो ये 20 लॉकडाउन पीरियड के क्या उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ सर, वो काउंट होंगे? 1 मिनट में हेलो, हाँ जी, हैं? Okay, folks, after Tanuja, Abha, Jen, and then I think we should stop. It is 5:52. We have, you know, been at it for the past 2 hours. Sorry to interrupt, Dr. Pal. I have a very small question, if you allow me to ask. Yes, Renuka, but let's keep it really brief. Yeah, definitely, ma'am. Yeah. बताइए मैम, आप जो बोल रहे थे। सर मैं ये कह रही थी कि जो सेकंड प्रमोशन है, मेरा फर्स्ट भी नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट ड्यू है 6 अगस्त 2014। तो मेरा जो दूसरा होगा, मैं पीएचडी करके यहाँ पर आई थी, और सर जो मेरा दूसरा होगा 5 इयर्स के बाद होना चाहिए, उसमें मेरा रिफ्रेशर नहीं है, क्योंकि वो प्रमोशन रुके हुए थे तो मैंने नहीं किया। और सर क्या अभी ये जो अगर मैं 4 वर्कशॉप कर लेती हूँ तो है मेरे पास, तो क्या वो 2020 के ये जो लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन हो रही है, क्या ये उसमें मेरे 19 के जो सेकंड प्रमोशन है उसमें ऐड हो सकती है? क्या मुझे भरना चाहिए, इनको ऐड करना चाहिए? क्योंकि मुझे 50 पॉइंट्स तो बनाने होंगे, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, ऑल्दो मैंने कॉलेज का काम किया है उस टाइम पीरियड में, बट ये सब पब्लिकेशन और ये रिफ्रेशर नहीं है मेरा उस टाइम पीरियड में 5 इयर्स में। 2 चीजें हैं इसमें, आप 2 चीजें समझ लीजिए। एक तो आपको पॉइंट्स बनाने के लिए, 50 पॉइंट बनाने के लिए रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है। वो आपकी कैटेगरी 2 और 3 को मिला के 50 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी 2 में अलग चाहिए, कैटेगरी 3 में चलेंगे। क्लियर है सर ये बात। कैटेगरी 2 में भी अगर आपके हो गए तब भी हो जाएंगे। अब रही बात दूसरी कि आपका जो एफडीपीज है, देखिए सिर्फ वही एफडीपीज जो एमएचआरडी की एक स्कीम है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। इस स्कीम के तहत टीचिंग लर्निंग सेंटर्स, कुछ सेंटर डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हुए हैं, कुछ ये टीचिंग लर्निंग सेंटर्स खोले हुए हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग सेंटर जो अगर इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं वो ओरिएंटेशन के इक्विवेलेंट है, जो ये एफडीपीज कराते हैं वो रिफ्रेशर के इक्विवेलेंट है। तो 14 दिन का जो एफडीपी होता है वो 10 डेज वाला, वो 1 रिफ्रेशर के इक्विवेलेंट है, और जो 2 एफडीपीज होंगे 7 डेज 1 वीक वाले, वो 1 रिफ्रेशर के इक्विवेलेंट होंगे। अब रही बात तीसरी कि आपने 31 दिसंबर 2018 के बाद किए हैं, मतलब आपका ड्यू डेट निकल गई है 2019 में, और जब तक आपका रिफ्रेशर नहीं है। जी सर। अभी आप वी आर होपफुल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट UGC may give another letter, may send another clarification regarding exemption from orientation and refresher, and they may extend it up to 2021. But I am saying it is only an expectation. Don't take it कि इसको ये मत लेना कि भाई ऐसा बोला गया था कि हम तो इस चक्कर में कॉम्प्लेसेंट हो गए। ये भी आपकी गलत अप्रोच है। वैसे सॉरी टू से कि प्रमोशन बंद हो गए तो आपने रिफ्रेशर बंद कर दिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि सर मैं सच में, क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया कि अगर आप फर्स्ट होने दो, अदरवाइज वो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। बहुत सीनियर में किसी ने बताया था कि क्योंकि पहले एक के लिए एक ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर चाहिए और होने दो, अदरवाइज अगर प्रमोशन डिले होंगे तो क्या बैक वो पीरियड लैप्स हो जाएगा आपकी सर्विस से? सर पता नहीं सर, किसी ने सजेस्ट किया मुझे सीनियर में। Let it be, it can't be changed now, ना डॉक्टर अत्री? यस मैम। तो अब मुझे क्या भरना चाहिए, सेकंड वाला, या मैं सिर्फ एक ही फॉर्म भरूं सर? आप भर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो अपने ये रिफ्रेशर नहीं किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें लगा दीजिएगा जो पॉइंट्स बनते हैं आपके। अब तो अपार में ही भरेंगे आप, ये तो कैश 2018 में ही भरेंगे आप, ठीक है? ओके। उसमें पॉइंट्स की जरूरत है नहीं, कैश 2018 में भरेंगे तो उसमें कैश की आप 2019 में आ रहा है ना आपका, तो आप 2018 भरेंगे इसके लिए। उसमें एपीआई चाहिए नहीं, ही नहीं, तो आप अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से प्रमोशन के पेपर फाइल कर दीजिए। ठीक है सर। तो उसका एवरी ईयर का मुझे वैसे ही अपार भरना होगा सर? मुझे भी तो फर्स्ट भी लेना है, अभी सर मेरा फर्स्ट भी नहीं हुआ, तो उसमें भी मैं 2018 चाहूँ तो पिक कर सकती हूँ। तो मुझे ये सारे 9 इयर्स के अपार लगाने होंगे, मैं राइट सर? मैं सही सोच रही हूँ? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Principal Ma'am. Renuka had a small question. Abha, after that you. Renuka. Thank you, ma'am.
Good evening, sir. So my question is related to the eligibility criteria. So I got permanent appointment here in this college on 30th November 2007. And I got study leave from August 2013. तो मेरा जो 6 years का eligibility बनता है वो बनता है नवंबर 2016 सर अगस्त 2013 में अगस्त 2013 में स्टडी लीव ली थी सर मैंने और मेरे पास एमफिल नहीं था, मैंने डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कराया था। उस हिसाब से एलिजिबिलिटी मेरा बनना चाहिए था नवंबर 2013 में, पर मैंने स्टडी लीव 3 साल के लिए कंप्लीट करके ज्वाइन किया अगस्त 2016 में। तो मुझे ये पूछना था कि मेरा एलिजिबिलिटी कब बन रहा है नेक्स्ट प्रमोशन का। आपने 13 नवंबर 2007 को आपने ज्वाइन किया था एज ए परमानेंट टीचर जी। उससे पहले आपका कोई एडहॉक एक्सपीरियंस था? नहीं सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कोई आपकी पीएचडी एमफिल कब हुई? सर मेरी पीएचडी मुझे पीएचडी डिग्री मिली है 2018 में, मार्च 2018 में। एमफिल नहीं था? नहीं सर, एमफिल नहीं किया, डायरेक्ट पीएचडी। तो ठीक तो है, आप 9 नवंबर 2013 में एलिजिबल हो गए आप, इवन दो यू हैव वेंट ऑन लीव ऑन अगस्त 2013। जी। तो आप नवंबर 2013 को फर्स्ट प्रमोशन आपका ड्यू हो गया, दूसरा प्रमोशन आपका नवंबर 2018 में हो गया। ओके, सो सर मुझे लगा वो स्टडी लीव का पीरियड शायद एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड नहीं होगा, वो काउंट होगा। Okay, thank you so much, sir. I can't understand why there is confusion about these things. These are all written. Please read the guidelines. I request everyone. Dr. Atri had told us this even for screening, that we've not bothered to read the guidelines. Similarly, even for this, I request all due for promotion to please read the guidelines once carefully. It takes some time, it takes some patience, but please read them. Abha, please. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir. मुझे ये पूछना था, मैं वैसे जो पूछा था क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मेरा स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड का प्रमोशन ड्यू है और ये दोनों ही 2018 से पहले हैं। 2014 में मेरा सेकंड स्टेज का ड्यू है और 2017 में मेरा थर्ड स्टेज यानी एसोसिएट के लिए ड्यू है। मेरा जो कहना है, मेरे पास जो आर्टिकल्स हैं उसमें से मेरे पास 2 तो बन रहे हैं जो पीयर रिव्यूड हैं, और क्योंकि वो बहुत पहले टाइम के थे, वो अभी मेरे को एक का वो नहीं मिला, उसका क्या बोले प्रूफ नहीं मिला है। तो डू यू थिंक मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है यदि मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका? तो मैं थर्ड आर्टिकल के लिए क्योंकि पॉइंट आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको ये रिसर्च पेपर चाहिए ही नहीं आपको 2 प्रमोशंस में, एसोसिएट प्रोफेसर में भी ना आपको सेकंड एसोसिएट के लिए कह रही हूँ मैं बोल रहा हूँ ना, एसोसिएट के लिए चाहिए ना, सेकंड स्टेज के लिए चाहिए आपको। इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कैस 2018 में, इट इज काउंटेड जस्ट एज ए वन ऑफ द। वैसे मेरा तो 2010 के हिसाब से होगा ना, क्योंकि मेरा सारे 2018 से पहले बन रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता, मतलब आप पेंडिंग केसेस में भी 2018 ऑप्ट कर सकते हैं ना। ओके, तो पर वो ये उन्होंने बोला कि 2018 से काउंट होगा, तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है ना फिर। वो पेंडिंग केसेस के लिए अलाउ किया हुआ है ना कैश 2018 में। ठीक। और सर एक सिली सा क्वेश्चन है कि कैन वी जस्ट टाइप एंड गेट अ प्रिंट आउट, और डू वी हैव टू राइट रिटन हैंड रिटन ओनली फॉर्म्स? डू वी हैव टू फिल हैंड रिटन ओनली? इज इट ओके टू फिल ऑनलाइन एंड देन टेक आउट? मैम कंप्यूटर में टाइप करो, नीट क्लीन रहेगा, समझ में आएगा। हाथ से करोगे तो सारा वही मैं पूछ रहा था। कंप्यूटर में रहेगा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हैंडराइटिंग समझने में। बस वही मैं कह रही हूँ कि मैं एक्चुअली वही करा था, तो इज इट अलाउड और नॉट? दैट्स व्हाट आई वाज वांटेड टू आस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अंडरस्टैंडिंग की बात है, मतलब समझ में आ जाता है आपका तो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Yeah. I think there was, I don't know if Bijoyta, your hand is raised by mistake, but since that's the last hand I see raised, I'll ask you that if you have a question, make it brief. Oh, actually, it was a mistake, ma'am. But yes, I would like to take the opportunity. Sir, I think I have understood it. Just to, if it's yes or no, sir. Like my according to CAS 2018, 2 refresher course in the second promotion is written, but as you are saying 2018 से पहले का promotion है, तो then there is no requirement of refresher course. रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स मैं आपको बता दूं इसमें During my जी 31 दिसंबर 2018 से पहले जिनके भी जो ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि इट इज नो मैंडेटरी, मतलब promotions due up to 31st December 2018, refresher and orientation courses are not required or not mandatory.
ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिएंटेशन Yes, एंड sir. फ्रेशर कोर्स फॉर द प्रमोशंस ड्यू अप टू 31 दिसंबर 2018 आर नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि भाई वो मैंडेटरी नहीं है, आपने जी। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कोई बाद बात नहीं। अच्छा जी, एक्सप्लेन इट वंस अगेन प्लीज, एक बार फिर से थैंक यू बताएं। सर, थैंक यू वेरी मच। नॉट मैंडेटरी, आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नहीं, तो डेट बाद क्या में बताई करेंगे आप आपने, उसको। कौन सी डेट से पहले? 31 दिसंबर 2018। इससे पहले जितने भी प्रमोशंस ड्यू हैं वो उनकी वजह से आपकी असेसमेंट पीरियड नहीं खिसकेगा, अगर आपने फ्रेशर ओरिएंटेशन नहीं किया है तो। सर इसमें कंडीशन रहेगी क्या, उनको बाद में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मतलब कंडीशनल प्रमोशन तो नहीं होगी ना सर? देखिए ऐसा है, एक यूजीसी का लेटर आया था अक्टूबर 2018 में। यस सर। जिसमें उन्होंने कहा कि हम ना एक्सटेंशन दे रहे हैं 31 दिसंबर 2018 तक करने की कैरियर यस एडवांस। सर, यस सर। तो आप इसको पॉजिटिवली थोड़ा सा इंटरप्रेट करें कि रिक्वायर, जब यूजीसी, जब हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया और बोल दिया कि रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है तो नहीं है, फिर बाद में करें। अगर यूजीसी देगी इसको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी एक आएगा लेटर जिसमें 2021 तक ही दे देंगे ये एग्जम्पशन। अच्छा, ठीक है। Yeah, but like I think it is well said by you that all of these are just things which are in expectation. Neither the UGC nor the university are renowned for their promptitude in doing anything. So we can't keep waiting. अभी जो है, please, at least हमारी तरफ से, कॉलेज की तरफ से, आपकी तरफ से कोई डिलेमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भगवान भरोसे, as I always say, we are not, neither you as individuals nor the college as an institution can force the university to send us, to follow it up. But we must not, let go of this opportunity. So I think we'll end it here. It is past 6. And Dr. Atri, my God, you've got monumental patience. I think you should get an award for just your patience. Your patience is very inspiring. And your in-depth knowledge and understanding is great. More than 100 calls, 120 calls on an average daily, and more than 700 messages, WhatsApp messages, and I try to message all of them before I go to sleep. So it takes me 2:30. That's really wonderful of you. I can well imagine. As principals also, we sometimes have to take those many calls and messages and emails. So I know what you go through. I'm also up very often till 2, but you are doing it out of kindness, which is absolutely amazing. Thank you very, very much on behalf of the entire college, really. And I know that people have your number. I have shared your number with Dr. Day, who asked for it. Others also have your phone number. They have your email ID. So I'm sure you're going to get a few more mails and a few more phone calls. So thanks a lot. Thanks a lot. That was really useful. Very useful. Thank you.